Whatever you give a meaning, you're going to have a feeling. If you your life, you're answering 3 questions. Jot them down. 3 questions. First question is, what are you going to focus on? Right now, whatever you're focusing on affects you. If you're focusing on how you're going to use what you can learn this weekend, you could be focusing on the smell of your neighbor after all that jumping up and down. There's so many things you can focus on. We don't focus on everything. We focus on a small number of things, and that's what we experience in life. And focus, write down, equals feeling. Whatever you focus on, you're going to feel, even if it's not true. Have you ever had somebody tell you something and said, you think John is your friend? John's not your friend. He's talking behind your back. And you go, no, he's not. John's my friend. You misunderstood. But if 2 or 3 people tell you John's talking behind your back, you can get pretty pissed off because that's really just hurt, right? Walaikum you assalam. confront John. Who's ever done this? Confronted somebody about something you've done and then found out you were wrong and felt like an idiot. Who's ever had this happen before? Say I. So the most powerful decision we make, and most of us don't make it consciously, is what are we going to focus on? Because you could be focusing right now on the blood rushing through your left ear or the touch of your clothes against your skin, but you don't. Most of what your brain does is distort, delete, and generalize to make life simple. And the problem is when you distort, delete, and generalize, you miss a lot of your life. So we want to kind of see if we can't. Thank you, Sohail bhai. Manpreet, welcome. And what we got to do is figure out what the focus is. Let me give you 3 patterns of focus. You tell me which Sohail of bhai, these thank are you. And there's no right or wrong. And don't get personal about it, because if you don't like your answer, we can fix it. I want you to think like software. Here's my question. If I asked you, there are 2 things you could focus on, what you have or what's missing. Which one do you spend more time focusing on? Shout it out. You can hear in the room. You were not taking a poll. One is dominant. Raise your hand if you focus more on what's missing. Raise your hand nice and high. Keep your hands high and look around this room. It's about 95% of the room. Now, I have a simple question for you. It's a really important question. It's a simple one, but an important one. जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. क्या हाल है? ठीक है सब? यस, लाइव को शेयर करना चाहिए. मियाँ साहब क्या हाल है आपके? सबको चाहिए कि लाइव को ना जी मैं ठीक हूँ. 15 टाइम ना सब अपनी भी लाइव को शेयर करें. जी कलसूम बाजी क्या हाल है आपका? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. वालेकुम सलाम. सबको चाहिए कि अपनी अपनी अब इस लाइव को ना 10 to 15 टाइम शेयर करें. अली भाई क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ एवान अल्हम्दुलिल्लाह. अभी थोड़ा टाइम गुजरेगा और लोग आ जाएंगे. जी मियाँ साहब थकावट उतर गई है. बहुत सोया हूँ मैं. कल मैं बहुत सोया हूँ. 17-18 घंटे सोया हूँ मैं. कल शाम 7 बजे सो गया. आज दोपहर 1 बजे उठा हूँ मैं. ट्रिप जो है ना वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट था. यस, बेस्ट ट्रिप एवर इन माय लाइफ. मुझसे ना पूछें, वो भी जो मेरे साथ गए थे ना वो आपको बताएंगे. नहीं मैं पैक शैक वाला काम नहीं करता. somebody says bull run coming. Get to fit. Yeah, you are in a bull run. Are you been sleep? बिटकॉइन 15,000 से 67,000 पे ट्रेड कर रहे हैं. यू सेइंग इज बुल रन कमिंग. अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाने हैं. बहुत सारी चीज़ें आ जानी हैं. सब ने अपना ही पूछ रहे होना है. ठीक है, तो उससे पहले जो पूछना है पूछ लें. एमी कह रहे हैं कि भाजी तुम पैक शैक लाते हो. मैं कहा नहीं, मैं वो काम नहीं करता. फिर वो कह रहे हैं कि भाजी फिर तुहाडा दिल इन्ना वड्डा किवें आ. क्या मतलब? समझा नहीं मैं. पैक लगाने से दिल बड़ा होता है, वैसे दिल नहीं बड़ा हो सकता. सही है. चलें और बताएं क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है सबकी? सब A1 है? क्या हो रहा है? कंफ्यूज हो गए हैं सब लोग फिर दोबारा.
परेशान हो गए हैं। एनी अपडेट ऑन XCAD एंड बैक्स? XCAD, आई थिंक XCAD जो है वो अपना बॉटम परफॉर्म कर रहा है। XCAD वाले सुन लें, आज से 3 दिन पहले ही मैंने कहा था किसी को कि अगर XCAD को किसी ने DCA करना है, आई बिलीव ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। मेरा ओपिनियन है कि XCAD मूव होगा और एक अच्छी रैली करेगा। और XCAD जो है, मेरा ओपिनियन ये है कि वो बॉटम हो चुका है उसका। अगर बिटकॉइन कुछ क्रेजी ड्रॉप नहीं करता तो XCAD जो है वो ऑलरेडी बॉटम आउट हो गया। किसी ने DCA करना है तो यहाँ पे करें, ठीक है। XCAD की तो ये बात होगी। बैक के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी नहीं, थोड़ा ठहर जाए। बैक्स वाले ORDS स्टिल नॉट पंपिंग, सही बात है, पंप नहीं कर रहा, वो डंप कर रहा है। एंड आई वांट हिम डंप मोर। मुझसे पूछो तो ORDS का, क्योंकि मैंने मोस्टली ORDS जो है वो 12 सेंट पे बाय किया है मोस्टली, ठीक है। फिर मैंने इसको DCA किया था थोड़ा सा 8 सेंट पे। उसके बाद मैंने कहा था कि ये 4 सेंट पे आ सकता है, मैं ट्वीट भी करता रहा हूँ इसके बारे में। अगर यहाँ पे ORDS जो है एक बेस बिल्ड करता है, मेरा ख्याल है ये यहाँ पे एक बेस बिल्ड कर रहा है ORDS, तो यहाँ पे इसको DCA कर लेना चाहिए। और जो लोग रश कर रहे हैं, स्टिल नॉट पंपिंग, इज नॉट दिस दैट एंड द अदर, यार ORDS का हमारा टारगेट क्या है? आई मीन व्हाट्स द टारगेट? अगर हमारा टारगेट ORDS का 20x या 30x या 50x उसका टारगेट है तो उसको टाइम देना आप लोग। आई मीन इफ यू आर इन रश तो DCA कर लें, एवरेज करें, थोड़ा सा पंप हो। आई मीन I'm not अपसेट, ठीक है। ना ही मैं कोई स्मार्ट आंसर देने लगा हूँ, मैं सिर्फ उन बंदों के लिए ये करने लगा हूँ जो लोग रश कर रहे हैं। आप ये डाउन है, थोड़ा DCA करें, एवरेज बना लें। एवरेज बनाने के बाद ये ORDS की बात कर रहा हूँ, जो लोग रश कर रहे हैं उनके लिए आंसर है। आपकी एवरेज पे पहुंचे, सेल करो और कुछ और जाके ले लो, whatever you think is better, ठीक है। क्योंकि इसका तो मैंने ORDS हो गया, चेन स्वैप, लिनक्स, जितने भी हैं ये जो नए प्रोजेक्ट मैंने कहे थे या जो मैं ट्विटर पे ऐड कर रहा हूँ, यार ये एक रैली करके आ चुके हैं। अभी ये कहीं पे बॉटम होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने एक बेस बिल्ड करनी है, वहाँ से इनका रिवर्सल होगा और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आई मीन हमने 30x लेना भी है और हमारे पास 3-4-6 महीने टाइम भी नहीं है, तो आई मीन इट्स ओके, ठीक है। मैं लिनक्स का सबको पिछले 10-15 दिन से हर ट्वीट में कहता रहा हूँ, पिछली लाइव में भी कहा था कि इसको ऐड करते रहें साथ साथ। और बिल्कुल आई मीन 2.5 मिलियन मार्केट कैप था लास्ट हमारी जो लाइव थी, उसमें लिनक्स का मार्केट कैप था 2.5 मिलियन। मेरा ख्याल है आज वो 5 मिलियन पे पहुंच गया होगा। ये ऑलमोस्ट 5 मिलियन, एग्जैक्टली 5 मिलियन। तो यार आई मीन चीज़ों को टाइम देंगे तो होगा, ठीक है। बाकी बैक्स के बारे में हम आराम से डिस्कस करेंगे। फाज भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार, आपने बहुत सारे गिफ्ट भेज दिए हैं। एंड मैं यहीं पे मैं ORDS के बारे में बात कर रहा था। यार सप्लाई डंप करेंगे, सारा कुछ करेंगे, टीमें बनाती किस लिए प्रोजेक्ट? यू टेल मी। हाँ, टीम्स किस लिए क्यों प्रोजेक्ट बनाती हैं? और यार उन्होंने सप्लाई डंप करनी ही होती है। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, उसका क्या टीम का एम क्या होता है? कोई उसने हमें खिला के थोड़ी चले जाना, ठीक है। उनकी कोशिश तो ऑब्वियसली टीम की कोशिश होगी, मार्केट मेकर जो है वो टीम एक मार्केट उनके जो प्रोजेक्ट, जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट होता है वो एक मार्केट मेकिंग टीम भी, मार्केट मेकर जो है ना, मार्केट मेकिंग टीम भी हायर करते हैं, ठीक है। किसी कोई हर प्रोजेक्ट अपने अपने वॉल्यूम और जितना वो टीम अफोर्ड कर सकती है उस हिसाब से वो MM टीम रखते हैं, जो उनकी मार्केट मेकिंग टीम होती है, जो उनको पैसे बना के देती है, जिनमें टीम जो है प्रोजेक्ट की जो टीम होती है वो MM टीम को एक्सेस देती है सम पॉइंट कि वो सेलिंग बाइंग कर सकते हैं। तो यार उन्होंने भी तो कुछ कमाना होता है ना। तो टीमें जो लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं वो उनको हमारा फिक्र नहीं होता, उनको मोस्टली अपना फिक्र होता है ज़्यादा,
तो सप्लाई तो एनी में आनी होती है, डंप करनी होती है उन्होंने, कोई जल्दी डंप कर देता है, ये ट्रू है, ये फैक्ट चीज़ें हैं। कोई आहिस्ता आहिस्ता एवरी डे थोड़ी थोड़ी निकाल रहे होते हैं, कोई महीनों बाद निकाल रहे होते हैं, कोई नई चीज़ कहते हैं जी हम लोग इतने महीने तक सप्लाई नहीं डंप करेंगे, दिस दैट एंड दी अदर्स। यार इस सब ने सप्लाई डंप करनी होती है। अगर ORDS वालों ने सप्लाई उस दिन डंप की है, यस डेफिनेटली डंप की है, क्योंकि इसका मार्केट कैप था 20 मिलियन और प्राइस भी नीचे गए हैं और मार्केट कैप ऊपर गया। दैट मीन्स कि उन्होंने अच्छी खासी सप्लाई अपनी निकाली है, तो इट्स ओके कि उन्होंने मेरी नज़र में उन्होंने ठीक किया, क्योंकि प्रोजेक्ट वो उसके प्राइस ऑलरेडी जो थे एक करेक्शन ले रहे थे, करेक्शन के दौरान उन्होंने सप्लाई जो निकाली है। आई थिंक ये जो मैं और आप हैं जिन्होंने इसको 2 4 6 महीने इसके साथ खेलना है, टेक्निकली उनके लिए ये अच्छा है, क्योंकि अगर उन्होंने इस टाइम पे सप्लाई निकाली है जब वो करेक्शन में है, ठीक है, तो अगर ये अपसाइड पर रैली करता है, तो अगर वो सप्लाई उस अपसाइड रैली में डंप नहीं करेंगे तो उसको एक अच्छा पंप मिल सकता है। दैट्स व्हाट इट इज, सो कीप दैट इन योर माइंड। अगर करेक्शन में कोई टीम इस तरह कोई किसी अच्छे प्रोजेक्ट की सप्लाई निकाल रही होती है ना, तो आई थिंक वो बेटर होता है, ना कि वो एक उसका एक रैली शुरू ऑफ साइड और टीम वहाँ पे डंपिंग शुरू कर दे, वो रैली रुक जाती है। सो लेट्स सी, मेरी नज़र में स्टिल ये वैलिड प्रोजेक्ट है एंड हमें 2 4 महीने इसके साथ खेलना चाहिए। और लेनिक्स जो प्रोजेक्ट लेनिक्स है 2.5 मिलियन पे मैंने उसको 2.5 मिलियन पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि पिछली लाइव में जब हमने बातें की थी लिनक्स के हवाले से, ठीक है, उसका वॉल्यूम 2.5 मिलियन था। ओके, तो अब देखते हैं 2.5 मिलियन से अगर लिनक्स जो है $125 मिलियन का मार्केट कैप कर जाता है अगले 2 4 6 महीने में, तो इट्स 50x। तो इतनी बड़ी क्रेजी मार्केट में जहां ट्रिलियंस के हिसाब से पैसा आ रहा है, $100 मिलियन इज नथिंग यार। स्टूपिड मीन कॉइन्स जो है जिनका ना आगे को पता लग रहा है ना पीछे का पता लग रहा है, सारी मार्केट का पैसा वो निकाल के लिए जा रहे हैं। जो सही फंडामेंटल्स वाली चीज़ें हैं, जिनके पीछे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और जिनके पीछे इतना टाइम लोगों ने स्पेंड किया हुआ है, वो वहीं पे हैं। और पीछे से कोई पापा कैट, कोई मामा कैट, कोई पता नहीं अजीबो गरीब नाम के, पता नहीं क्या क्या नाम मैं देख रहा था आज, पता नहीं कौन कौन सी कैटें, क्या क्या नाम रख के लोग, डॉग किस किस चीज़ के नाम रख के उनके पीछे कुछ ग्रुप्स होते हैं, और समझ नहीं आती। आज देख रहे हो 50 मिलियन है, फिर 100 मिलियन है, फिर 150, फिर 200, फिर 500 मिलियन का मार्केट कैप लेके बैठे हुए हैं, जिनका पता ही नहीं कि उन्होंने करना गया आगे, और ये बहुत हार्ड डंप होने हैं। यस, वन डे दे ऑल गोना डंप हार्ड। समी भाई, आप एक क्वेश्चन टाइप कर दिया है, उसको रोकें। आप लोगों की बहुत गलत आदत है कि आप लोग ना एक क्वेश्चन को ना कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, तो इस तरह के जितने भी लोग होंगे वो ब्लॉक हो जाया करेंगे लाइव में, ठीक है, क्योंकि अभी तो लाइव शुरू की है, अब थोड़ा सा टाइम गुजरने दें, VRA के बारे में भी डिस्कस होगी। उस्मान भाई ऑलवेज एमबॉक्स के बारे में रोते रहते हो आप, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई आर यू कीप क्राइंग अबाउट एमबॉक्स। एमबॉक्स इज गोइंग टू जीरो उस्मान, या एमबॉक्स इज गोइंग टू जीरो। हूँ उस्मान दसेगा कि उस्मान ने किस प्राइस पे बाय किया है। उस्मान अब बताएगा कि मैंने जो है ना एमबॉक्स, उस्मान अब बताएगा कि एमबॉक्स जो है ना मैंने एक बड़े पंप के अंदर जाके लिया था, जब इसके प्राइस जो ना कुछ $4 थे, तो अब 33 पे जा रहा है, इसलिए उस्मान परेशान हुआ हुआ। उस्मान भाई, जब तक गेमिंग का नैरेटिव जो है वो मेन स्ट्रीम पे आके वॉल्यूम नहीं उठाएगा, एमबॉक्स भी पंप नहीं होगा, ठीक है, पर ये ज़हन में रख लो। एमबॉक्स हो गया, जितने भी यार सेलर हो गया, बिग टाइम हो गया, जितने भी गेमिंग के प्रोजेक्ट हैं, जब गेमिंग का नैरेटिव जैसे ही उसकी तरफ मार्केट मेकर्स जो हैं या इन्वेस्टर्स जो हैं या ये बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं, मी बाय 36 सेंट, तो वाई आर यू वरीड यार, यू बॉट द बॉटम, सो चिल आउट। चिल आउट। ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके पीछे टीम भी एक बड़ी अच्छी टीम है। आई थिंक इट विल डू वेरी वेल इफ यू गिव इट अ टाइम। बाकी नोबडी कैन पंप एमबॉक्स बाय इटसेल्फ। और हाँ, उनकी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है, उनका कोई फोर्टनाइट के साथ पार्टनरशिप हो जाए, उनकी किसी बड़ी
गेमिंग कंपनी के साथ कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप हो जाए, गूगल के साथ हो जाए, देन इट माइट गेट अप टू 500 मिलियन मार्केट कैप। बस 100 मिलियन पे है एमबॉक्स। आई मीन बिग कंपनी है, गेमिंग का नैरेटिव जब बिल्ड होगा तो एमबॉक्स अच्छा करेगा। आई मीन अगर आपने 36% पे लिया हुआ तो यू लकी, यू बॉट द बॉटम बडी। या टेलिंग यू, इसको टाइम दो। मेरी नज़र में आपको एमबॉक्स जैसा, जो अगर आपने देखो इसका टॉप क्या था, $10-11 इसका टॉप था, 36 सेंट पे आपने बाय किया। आई मीन $10 की चीज़, $11 की चीज़ 36 सेंट मीन्स कि आपने ऑलमोस्ट 35x डाउन पे जाके एक चीज़ खरीदी है। तो यहाँ से यार उसके लिए 10x 15x करना कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें में रखा करें। $15 टॉप हुआ था, मैं यू लकी। $15 की चीज़ बंदे ने 36 सेंट पे ली और वरिड हो रहा है। आई एम नॉट गोना बी वरिड। आपने ये याद करवा के ना मुझे भी एमबॉक्स बाय करवा देना है। सम पॉइंट मैंने भी बाय कर लेना है। नदीम भाई, नदीम सर, डोंट इग्नोर मी, ओ माय गुडनेस, ये सारे मैसेज आप लोग हर जगह पे लिख रहे होते हो, डोंट इग्नोर मी, मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दें, ये वो ये, मैं बहुत जगह पे फेक आईडी है मेरे पास बहुत है आप लोगों की तरह, मैं देख रहा होता हूँ सब ड्रामेबाजी आपकी हर जगह पे चल रही होती। ये हमारे रियलिस्टिक यार वही। आई मीन पहले यार इसका देख लें। ये हमजा क्या कह रहे हैं? हमजा कुछ पूछ रहा है जी, हमजा साहब को पूछ लें पहले। कोई टॉपिक डिस्कस करने नहीं देना आपने, अपने सवालों की तरफ उलझा लें जिस तरह के आप हर जगह पे जा करते हैं। सो लेट्स कीप गिविंग मी द क्वेश्चंस जिनकी कोई सेंस नहीं बनती और टाइम वेस्ट कर लेते हैं हम। आई मीन लाइव जो है 1 घंटा और कर लूँगा मैं, कोई काम की बात नहीं होगी। आप लोग अपने वही रिपीट क्वेश्चन करेंगे और मैं रिपीट आंसर करूँगा, ठीक है। तो ये टाइम वेस्टिंग होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा इसमें, कोई मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। अच्छा ठीक है, कर लेंगे। प्लीज़ गिव ओपिनियन हाउ टू बैलेंस अ पोर्टफोलियो। आका रीड हमजा क्वेश्चन। यार मुझे हमजा का ये क्वेश्चन आया ना, हमजा ने कहा जी, आई नो आई एम जोकिंग, टेक केयर गाइस, आई गॉट गो टू इम्पोर्टेंट सैटरडे मीटिंग। यार मुझे नहीं पता हमजा साहब क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। शेख साहब आप ऊपर आ जाए ना, इनके क्वेश्चन में खुद ही आंसर कर दें। एकदम नीचे क्वेश्चन इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे गुजर जाते हैं। दोनों ब्रदर ही इज नॉट इग्नोरिंग ब्रो, वरी नो यू, बट आई एम बैक फ्रॉम न्यूयॉर्क। यार आई मीन मेरे सामने क्वेश्चन आया ही कोई नहीं हमजा का। आई एम द ब्लैक कुर्ता, अच्छा इसलिए इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो हमजा, ब्लैक कुर्ता और वो ग्लासेस जो लगाते हो आप, क्रेजी। मैं कहा पता नहीं केड़ा कोई क्रिप्टो का बंदा आ रहा है जो आ गया, जो नाराज हो रहा है, चल छुट्टी कर, भाग जाए यहाँ से निकल। मुझे पता था वो वाला हमजा, मैंने तो बड़ी देर की किक करा देनी थी आपके बैक पे। मुझे पता है सैटरडे आप कहाँ जाओ। टुडे वेयर योर फ्रेंड उस्मान इधर ही है, उस्मान वो भी इधर ही है। भाजी यू लुक लाइक अच्छा हमजा का मुझे पता है आज वो उसने कहाँ जाना है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है उसने। हमजा मुझे पता है तुमने कहाँ जाना है सैटरडे, आई नो दैट। डू यू थिंक वी विल गेट स्मॉल रैली इन जून जुलाई बिफोर पाराबोलिक? या आई थिंक जून ठीक रहेगा। जून इसमें ऑल्ट कॉइन जो है ना, वो क्यों वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो आ रही यार। सर बुलरन का बताएं, इस मंथ आ रहा, सर बुलरन का बताएं, इस मंथ आ रहा है। जाहिद भाई यार ये जरा आप इधर ही देख लें चीज़ों को। सर यू आई मीन टू मेनी क्वेश्चन। सलाम ब्रो, यू गुड? विजय हैज़ पोटेंशियल मीमी और एआई फोटो गोइंग टू इन्वेस्ट इन। आगे चलें। व्हाट्स योर फेवरेट गोइंग बुलरन? यार फेवरेट कोइन 2-3 बताए तो थे उस दिन। एक तो फेवरेट लिस्ट में डाला हुआ है LYNX, ठीक है। दूसरा आपसे कहा था XSwap,
ये 2 फिलहाल फेवरेट लिस्ट में डाले हुए हैं, फेवरेट कोई नहीं, एकदम तो नहीं ना सारे आ जाएंगे, वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, लिस्ट बहुत लंबी है। नेक्स्ट पॉसिबल नैरेटिव प्लीज यार, कोई भी अभी तो सारे नैरेटिव ठुस सुबह में, कौन से नैरेटिव मुझे बताओ, कौन से नैरेटिव में अभी इस टाइम पे डेवलपमेंट हो रही है, पैसे आ रहे हैं, बिजनेस हो रहा है? नहीं, अभी तो जितना भी जो भी हो रहा है, आई मीन विदाउट एनी फंडामेंटल, जो मीन कॉइन्स हैं वो लिए जा रहे हैं सारा बिजनेस। अब टर्बो की चीज़ है, मुझे बताओ, टर्बो की प्रोजेक्ट है, मैंने आपको आई बिलीव के मार्च में ट्रेड की कराई थी मैंने टर्बो की, ग्रुप में पोस्ट भी की थी, मेरा ख्याल है 200 से 300% हमने उसमें से प्रॉफिट बनाया था टर्बो की ट्रेड में, ठीक है। और अब देख लें वो बॉटम से 20x कर गया, नजर ही नहीं, पता ही नहीं चला कहां से आया कहां चला गया। इज लिक्विडिटी कमिंग टू फैन टोकन्स, लेट्स सी फिर लिक्विडिटी कहां आती है। अभी तो लिक्विडिटी की कुछ समझ नहीं आती किस तरफ लोग चल पड़ते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने एआई के सारे प्रोजेक्ट टॉप पे जा खरीदे हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि एआई बहुत ज़्यादा अभी उसमें और लिक्विडिटी आएगी, एआई जो है और पुश करेगा। आई मीन इट्स नॉट, आई मीन मुश्किल हो गया एआई के लिए अब जो है ना। अब देखें, अब BTC 90 के पे, आई थिंक BTC का अगला टारगेट जो है ना 85 to 90 के है, वहाँ पर जाके BTC जो है एक साइडवेज में थोड़ा उस जगह पे नीचे आके एक साइडवेज बनाएगा, वहाँ पे पता चलेगा कि लिक्विडिटी या कौन सा नैरेटिव जो है वो फर्स्ट अटेंशन लेगा इन्वेस्टर्स की। तो लेट्स सी, अपने अपने जो पोर्टफोलियो हैं, जो चीज़ें हैं, उनको बिल्ड करते चलें और रश ना करें, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। लुक आउट द, रश ना करें चीज़ों में, कंफ्यूज ना हो। बुल मार्केट में एक फेस ऐसा आता है जो बिल्कुल बोरिंग हो जाता है, बिल्कुल बोरिंग हो जाता है, ठीक है। एक तो स्टार्ट होने से पहले बिल्कुल हर चीज़ ठंडी हो जाती है, बिल्कुल हर तरफ ऐसा होता है कि कभी इसने हिलना ही नहीं है। जो हालात थे मार्केट के अगस्त और सितंबर में ऐसा लगता था कि आई मीन सब तरफ नेगेटिव वाइब्स थी और कोई बंदा इसके बारे में पॉजिटिव बात करता ही नहीं था, कोई बंदा कहता ही नहीं था कि मार्केट मूव होगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट मूव हुई। अब फेज 2 खत्म हो रहा है, हम फेज 3 में एंटर हो रहे हैं। फेज 3 में जब एंटर हो रही होती है मार्केट, फेज 2 का एंड और फेज 3 का जो स्टार्ट होता है ना, उसमें बिल्कुल मार्केट साइडवेज, आई मीन कुछ नहीं आपको लग रहा होता, और बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। यार एक मिनट, ये क्वेश्चन वाले जो लोग हैं ना, ठहर जाए, वो कर लेते हैं बात। हम जो लाइव करने का जो असल मकसद है ना, उसको क्लोज करने दें पहले, ठीक है। ठहर जाए 2 मिनट। जाहिद भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद भाई 2-3 क्वेश्चन आप पकड़े, मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज करना चाह रहा हूँ, मैं करके आ रहा हूँ। जी जरूर। अच्छा, ACA जो पूछ रहा है भाई, ये काला का, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, मगर अच्छा कर जाएगा अगर आपने रखा हुआ है तो बस रखें। स्पेल ICP यार, ICP ने बड़ा अच्छा किया है, तो हमने इसमें से बड़ा अच्छा प्रॉफिट लिया है लास्ट टाइम। तो अभी भी हम कुछ होल्डिंग किए हुए हैं। पेपे 2 प्लीज़, पेपे 2 अभी जो पैसा मीन्स को में से निकल के आ रहा है, तो ये अभी पेपे 2 में जाएगा इंशाल्लाह। इसी कैन गो टू, नहीं मेरा नहीं ख्याल ऐसे चीमा साहब के $3 पे जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसका मार्केट कैप जो है 99 मिलियन, अराउंड 100 मिलियन है। बैक्स कैसे हैं? GLMR लास्ट टारगेट, यार GLMR का मेरा टारगेट तो $10 का है, पता नहीं अब वहाँ पे जाता है कि नहीं। नदीम भाई बैटर GLMR का टारगेट जो है वो है $100। GLMR गोइंग टू 100x। 100x 9 सेंट। कौन कौन लेके जा रहा है 100x?
NKN न्यू मीमी कोइन। यार न्यू मीम कोइन ना एक जाहिद, मैंने यहाँ पे किसी से बात की थी मीनू के हवाले से, लाइव मीनू पे कभी डिस्कस आपने किया था? मीनू किया था लास्ट टाइम। लाइव पे बात की थी मीनू की मैं उस दिन, मैंने जब वो 1 मिलियन मार्केट कैप पे था कि की थी मैंने, कोई मतलब यहाँ पे है कोई? वी आर स्टिल इन बुल रन, यस वी आर स्टिल इन बुल रन, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था लेकिन बीच में अमीन हमारे फ्रेंड्स हमारी कम्युनिटी करती क्या है, वो करते ये सब लोग ना कि अमीन यार, मेरा लाइव करने का ना टेक्निकली मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको मैं एक एक वो बच्चों की तरह अलिफ बे पे थे से ABCD वो अगेन एंड अगेन रोजाना पढ़ाऊं, रोजाना वही ABC पढ़ाऊं। कसम से मेरा यहाँ आने का मकसद ये नहीं होता। हाँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स आप पूछते हैं, एक अच्छा आंसर मतलब जो अच्छी चीज होती है उसके बारे में कमेंट पास करता हूं मैं, लेकिन आई मीन सॉरी टू से दैट, अगर हम लोगों ने वही ABCD पे ही रहना है, ठीक है, तो हम लोग वही क्वेश्चन जाके हर जगह पूछते रहते हैं, वही उन्हीं उन्हीं चीजों के बारे में, उन्हीं चीजों के बारे में। एक बंदा ये पेपर है ना, वो बंदा ये बताएगा इनवेल्प है, हर बंदा ये कहेगा दिस इज एनवेल्प, ये एम्प्टी है तो एम्प्टी है, इसमें कुछ है तो है, ये पेन है, ये पेन है, और ये पेन है, कहीं पे भी जाके पूछो अगला बंदा आपको बताएगा ये पेन है। एक टॉपिक होता है यार, जिस आई मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना बुल मार्केट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप लोग या मार्केट किस फेस में है ये समझ लें थोड़ी सी बात, ठीक है? बुल मार्केट के किस फेस में आप हैं, हम लोग कहाँ खड़े हैं, आई मीन यहां से मार्केट मूव होगी नहीं होगी, असल ओपिनियन ये देना होता है अपनी अपने फॉलोअर्स को, कम्युनिटी को। बहुत सारे लोग जो हैं, एक टाइम आता है सब लोग हाइप हो जाते हैं, ठीक है, उस वक्त उनको इस चीज की जरूरत नहीं होती, जिस तरह की लाइव में आजकल जो बातें हो रही हैं उनको ये लाइव नहीं चाहिए होती है, उनको आई मीन आजकल जो लाइव मैं करता हूं उसमें आप लोगों को साथ लेके चलने वाली लाइव होती है कि कुछ लोग कंफ्यूज ना हो इस टाइम पे। कुछ अच्छे लोग जो हैं, जो डिजर्विंग हैं, वो मार्केट में से एग्जिट ना कर जाएं, ठीक है, मार्केट में से एग्जिट ना कर जाएं। आई मीन इस पॉइंट पे आके ऐसी लाइव करनी होती है, ऐसी जर्नल डिस्कशन करनी होती है कि सबको साथ लेके चलने वाली बात करनी होती है। लेकिन होता यह है कि हम लोग 8 दिन पहले भी वही बात कर रहे हैं, हम लोग 10 दिन पहले भी वही क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग 1 महीना पहले भी वही क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग 6 महीने पहले भी वही क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, समझ आ जानी चाहिए कि जब मार्केट BTC एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, उसके बाद BTC एक छोटी मोटी करेक्शन लेता है, उसके बाद BTC करेक्शन लेने के बाद एक साइड वेज में जब वो मूव होना शुरू होता है, डोमिनेंस से डाउन होती है, और जो वॉल्यूम होता है, जो पैसा होता है BTC से निकल के ऑल्ट कॉइन्स में आना शुरू होता है, तब और जो है 1 by 1 डिफरेंट नैरेटिव जो है ना ब्लास्ट होते हैं, समटाइम 2-3 नैरेटिव इकट्ठे ही चल रहे होते हैं। अभी जो है मोस्ट लाइकली ये हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड हो रहा है सब कुछ, किसी अच्छे नैरेटिव में पैसे जा ही नहीं रहे, ठीक है, कुछ 2-4-5-10 मेजर ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मीम कॉइन्स को बस उन्हीं को पंप करते चले जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहां पर बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है, वो समझ रहे हैं कि यार अमीन मेरा जो पोर्टफोलियो है, जो 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 करने की बात है, जो सुनने की बात है, ठीक है, जिसके बारे में इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। मोस्ट फ्रेंड्स जो हैं ये आप सबके दिल में, ये मैं वो बात कर रहा हूं जो सबके दिल में होती है, ठीक है। इस टाइम पे मोस्ट कम्युनिटी जो है, मोस्ट लोग जो हैं, सब लोग कंफ्यूज हुए हैं, हो जाते हैं। आई मीन इंसान जब मार्केट बूम हो रही होती है, एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा होता है हर तरफ से, उस वक्त हम कंफ्यूज नहीं होते, उस वक्त हम हाइप में होते हैं, प्रॉफिट नजर आ रही होती है, पोर्टफोलियो एवरीडे ऊपर जा रहा होता है, वी आर ओके, हम कंफ्यूज नहीं होते। उन दिनों में मैं इस तरह की बात भी नहीं करता। जब मार्केट डाउन है, ठीक है, और साइडवेज में है, और इस वक्त आगे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों की टेक्निकली ये आप लोग फर्स्ट टाइम बेयर से बुल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए स्टिल आप काइंड ऑफ एक मिडल सी सिचुएशन में रहते हैं मोस्टली। एक
मिडल से सिचुएशन रहती है कि आप लोग आज समझते हैं कि यार टारगेट अचीव होंगे, मार्केट ऊपर जाएगी, बीटीसी 90 पे जाएगा, 120 पे जाएगा, मे भी उससे भी ऊपर चला जाए, लेकिन एक दो दिन बाद कोई नेगेटिव न्यूज या 2 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना मार्केट मूव नहीं होती, तो आपका जो मोराल होता है हाई हुआ हुआ वो आहिस्ता 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 डाउन होकर फिर जीरो की तरफ चला जाता है। फिर आप लोग वहां पे अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, बार बार पोर्टफोलियो को देखते हैं, यार ये कॉइन भी नहीं ऊपर गया, ये भी नहीं ऊपर गया, वो भी नहीं ऊपर गया, क्या ये मूव होगा, क्या मेरा टारगेट अचीव होगा, क्या मैंने ये चीजें जो सोची हुई हैं वो होगी भी कि नहीं, क्या बुल रन खत्म हो गया? बुल रन जो है वो मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी नहीं बनाएगी, फेज 2 में डन हो गया सारा कुछ, ये चीजें डिस्कस करने की। इस पॉइंट पे मैं चाहता हूं कि जितनी कम्युनिटी है, जितने हमारे लोग हैं, इस पॉइंट पे कोई बंदा एग्जिट ना कर जाए, ठीक है? इस पॉइंट पे जो लोग एग्जिट कर जाएंगे वो आई मीन बिग रिग्रेट करेंगे, बिग रिग्रेट, ठीक है? तो आजकल जो जो लाइव होती है वो करने का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, यही यही टाइम होता है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि ये मार्केट को साइडवेज में लेके जाएंगे, मार्केट मेकर की पूरी कोशिश होती है कि मोस्ट रिटेलर्स, मोस्ट नए लोग या जो 21 में है वो स्टिल नए हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक बेयर मार्केट से बुल पूरी देखी ही नहीं है। फिर जो चीज आपने अक्टूबर से लेकर मार्च तक मार्केट मूव देखी है ना, अब अगली मार्केट मूव जो है ना इससे 5 टाइम बड़ी होगी, ऑल्ट्स के हवाले से इससे 5 टाइम बड़ी होगी। अगर आपने अक्टूबर से मार्च अगर आपने उन 6 महीनों में कोई 10x 20x होते हुए देखे हैं ना, तो जो अगले 5 6 महीने का ऑल्ट सीजन होना है ना, उसमें आपको 20 to 50x 100x 200x इससे भी ज्यादा होते हुए कोई नजर आए प्रोजेक्ट नजर आएंगे, ठीक है? अभी वो वाला फेज जो है ना, जिसको मैं टेक्निकली कहता हूं यार ये स्टूपिड फेज है, इस कुछ समझ नहीं आ रही होती, जिसको भी आप अच्छे प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं वो ही जा रहा होता है, ठीक है? वो चीज अभी आनी है, आप लोगों के पोर्टफोलियो ठीक है। हाँ ये चीज है, कोई एक दो प्रोजेक्ट या कुछ 4 प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में ऐसे हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, बिल्कुल मूव नहीं हो रहे, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको डिस्कस करना है। शेख साहब भी आ गए, इसको डिस्कस करना है। आई मीन कोई आपके प्रोजेक्ट में, आपके पोर्टफोलियो में 40 प्रोजेक्ट हैं, 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मूव नहीं हो रहे, पुराने प्रोजेक्ट हैं, टीम है, एक्टिव हैं, वॉल्यूम भी आ रहा है, ये चीज डिस्कस करनी चाहिए हमें, ना कि हम यार ABCD पे अटके रहे। आई मीन दैट डजंट मेक नो सेंस। आई मीन हमें इतना मेच्योर हो जाना चाहिए, ना बस लेट्स से कि किसी के पोर्टफोलियो में 40 प्रोजेक्ट हैं और 5 6 प्रोजेक्ट जो हैं, 8 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो नहीं मूव हो रहे, बंदा उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है? अगर मैं आपकी जगह होऊंगा, मैं कभी भी वो सारा प्रोजेक्ट नहीं बेचूंगा। अगर उसकी टीम एक्टिव है, अगर उसमें वॉल्यूम आ रहा है, वो अच्छी एक्सचेंजेस पे है, उसका कुछ ना कुछ किसी नैरेटिव का हिस्सा है, यानी AI है, रॉ है, डीप इन है, कुछ भी है वो, ठीक है? चाहे वो कुछ अच्छा मीन कोइन है, अगर वो किसी ना किसी नैरेटिव का हिस्सा है ना, तो मैं उसको सेल नहीं करूंगा सारा। हाँ अगर मेरी उसमें बड़ी अमाउंट है, मैं ये करूंगा यार ये बिल्कुल भी आई मीन मूव नहीं हुआ, मैं ये नहीं करूंगा कि मेरा उसमें 10,000 है तो मैं 10,000 का ही बेच दूं, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। हाँ ये हो सकता है कि उसमें मैं ये कर दूंगा, अपनी पोजीशन जो है उसको थोड़ा लाइट कर लूंगा, पोजीशन को हाफ कर दूंगा, पूरा नहीं खत्म करूंगा उसको, क्योंकि यू नेवर नो, इट्स क्रिप्टो, और क्रिप्टो में हमेशा मोस्टली अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, वो चीजें ज्यादा होती हैं जिसका आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है? आप अपने उस पुराने प्रोजेक्ट को आई मीन अंडर एस्टिमेट कर दो एंड 100% सेल कर दो, और होता यही है, 100% सेल करके आप किसी ऐसी चीज में चले जाओगे जो आपको लगेगा बहुत अच्छी है, और जैसे ही आप उसमें जाओगे वो भी डाउन होना शुरू हो जाएगा, जिसको आपने सेल किया वो ऊपर जाना शुरू कर देगा, ज्यादा स्ट्रेस होती है। तो यहां पे पोर्टफोलियो के हवाले से ये चीज सोचनी है। अभी किसी का क्वेश्चन था ना, पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे करना है, ये चीज आप सोचें। अगर आपको लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई 5 10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आई मीन मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, आपने अपना डिसीजन खुद लेना है, मैं क्या करूंगा, मैं सारा नहीं बेचूंगा, जिस तरह के बैग्स है नहीं मूव हो रहा, ठीक है? उसी तरह एक दो लेट्स से कोई भी और प्रोजेक्ट आप ले लें, ठीक है? अगर आप
नहीं सेटिस्फाई, आप समझते हैं कि यार ये नहीं मूव हो रहा, मैं मेरे में इतना अब सब्र नहीं है, आई मीन मेरे में वो पेशेंस नहीं है, आई मीन लेट इट गो। सो अगर उसमें सारी क्वालिटीज हैं तो डोंट लेट इट गो 100%, पूरा ना उसको जाया करें। 50% 60% रख लें, बाकी उसको किसी अच्छे नए प्रोजेक्ट के साथ आप स्वैप कर लें। मैं ये करूं, ठीक है। यहां पे ये चीज डिस्कस करने वाली है। हाँ, हम एक ही बात आके मुझसे आप पूछेंगे जी चेन लिंक कहां पे जाएगा, उसका टारगेट क्या है, डॉट का टारगेट क्या है, जीएलएमआर का टारगेट क्या है, वो चीजें सारी हम वही उसी जगह पे अटके रहेंगे ना यार। टॉपिक फिर वो जो मैं कहना चाह रहा होता हूँ चीजें वो टाइम वो मेरे जहन से चीजें निकल जाती हैं। तो यहां पे आपने सिर्फ ये देखना है, जो भी पोर्टफोलियो में चीज आपकी मूव नहीं हो रही, अगेन कभी भी 100% सेल करके किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ स्वाइप नहीं करनी। जब भी स्वाप करने जाना है मैं 50% ही जाऊंगा, एटलीस्ट मैं उसको 40% जरूर रखूंगा, ताकि अगर वो मूव होना शुरू होता भी है तो मुझे ये रिग्रेट ना हो कि यार मैंने सेल कर दिया हुआ। आप एग्री है मेरी इस बात से शेख साहब? जाहिद भाई क्या ख्याल है? अक्सर ऐसा होता है हम जो चीज लेते हैं बिल्कुल सही है वो नीचे चली जाती है, जो बेचते हैं वो ऊपर जी चली जी। जाती है। ऐसे ही 100% ऐसे ही होता है भाई। क्या ख्याल है? मतलब आई मीन लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या समझते हैं? लास्ट अनएक्सपेक्टेड टाइम चीजें मैंने होती DFL हैं, किया था अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। बाकी जो नई चीजें आप ऐड कर रहे हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं, ऑलवेज समबडी से ऑलवेज ऐसे ही होता है, हमेशा ही है ये यार, अनएक्सपेक्टेड चीजें ही होती हैं। अगर ये इतना आसान हो तो लेट्स से कि इस टाइम पे 50 मिलियन लोग क्रिप्टो कर रहे हैं, दैट मीन्स के 50 मिलियन के 50 मिलियन लोग जो हैं वो मिलियनर बन जाएंगे। अगर इतना आसान हो तो ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। आई मीन जो लोग एक अच्छा जिनके खोपड़ी में एक अच्छी जगह है ना खाली, जहां पे वो अपनी चीजें स्टोर कर सकते हैं क्रिप्टो के हवाले से, वो पैसे बना जाते हैं। क्यों? जिनमें सब्र होता है। सब्र उन्हीं में होता है जिनके पास खोपड़ी में थोड़ी जगह हो, जिनकी खोपड़ी में जगह नहीं ना होती कुछ समझने की, वो उनमें सब्र भी नहीं होता। तो क्रिप्टो जो है इसका पहला इसका नंबर 1 स्टेप यही है कि अगर आपके पास पेशेंस हैं, सब्र है, यू गोना मेक इट। अगर सब्र नहीं है, यू नॉट गोना मेक इट। तो कौन से प्रोजेक्ट ने 30x जाना है, 50x जाना है, 100x जाना है, वो हम ओपिनियन कर देते हैं उसका, उस प्रोजेक्ट को, टीम को, अपडेट्स को, उसकी पार्टनरशिप्स को देख के बंदा अपना ओपिनियन देता है। जो पुराने लोग होते हैं अपना ओपिनियन दे देते हैं, ठीक है। वालेकुम सलाम रबी मलिक, क्या हाल है आपका? तो ओपिनियन एक अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो आपको यहाँ पे चीजें चाहिए होती हैं, ओवरऑल क्या है। मेरा नहीं ख्याल, आई एम 99.9% श्योर कि बुल मार्केट जो है वो आधी गुजरी है, ठीक है। मैं समझता हूं कि 45% बुल मार्केट गुजरी है। वी स्टिल हैव 55% बुल मार्केट, ठीक है, आने वाली है, जो आ रही है, जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो फेस है ना, यहां से वो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं मार्केट में से। और जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो को 2024 में मार्च में स्टार्ट किया टॉप के करीब, उनमें से बहुत सारे लोग, नए लोग ऑलरेडी, नए जो लोग जिन्होंने 24 में स्टार्ट किया था ना, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने जनवरी फरवरी में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जो मूव नहीं हुए, वो लोग भी डिसार्ड होके मार्केट से निकल चुके हैं। तो मार्केट मेकर जो है उनकी हमेशा ये प्लानिंग होती है कि सम पॉइंट बुल मार्केट के अंदर एक ऐसा टाइम बिल्ड किया जाए जिसके अंदर लोग, मोस्ट लोग जो हैं वो डिसअपॉइंट हो जाएं, वो डिसार्ड हो जाएं, वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में से एग्जिट करना शुरू कर दें, ठीक है। तो जब जब टू मच श्योर हो जाएगा ना, बोरिंग, क्रिप्टो इज नॉट मूविंग, ऑल्स आर डाइंग, जब हर तरफ एक 100 में से 95 लोग जो है ना क्राई करना शुरू कर देंगे ना, समझ लेंगे वो बॉटम होगा मार्केट का, और वहां से मार्केट मूव होना शुरू होगी,
और वो 95% लोग चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे, वो 95% लोग जो होंगे गलत टाइम पे चीज़ें सेल कर रहे होंगे, गलत टाइम पे चीज़ें लेफ्ट एंड राइट स्वैप कर रहे होंगे, बाइंग कर रहे होंगे। आप 50 ट्रेडिंग कर लो इस टाइम पे जब मार्केट मूव नहीं हो रही। जब मार्केट मूव हो रही होती है ना, आपकी 50 ट्रेड्स जो है ना वो एक साइड पे हो जाती हैं। जब मार्केट जब मूव नहीं हो रही होती, साइड वेज में चल रही है, 50 ट्रेडिंग कर लें। जब मार्केट मूव हो रही होती है, अपसाइड ट्रेंड होता है, आपकी वो कोई एक अच्छी ट्रेड उन 50 ट्रेड को साइड पे लगा के रख देती है, और जो विदाउट स्ट्रेस उसमें पैसे बन जाते हैं। ठीक है, सो वी आर इन द बुल मार्केट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पोर्टफोलियो ठीक हैं। जैसे उस्मान अभी बार बार एम बॉक्स का पूछता है, $15 वाला प्रोजेक्ट जो है ना 36 सेंट पे लिया हुआ, शेख साहब फिर आगे पूछी जाता है एम बॉक्स का दसो जी। सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आप लोग ये वाले 6 से 7 महीने देख लेंगे ना, रानी कह रही है आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माय हस्बैंड नॉट टू सेल ईथ, या ही डोंट हैव, आई डोंट नो व्हाई ही वांट टू सेल ईथ। अगर उन्होंने ईथ सेल करना है ना तो उन्हें कहीं कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स में चले जाएं। हाँ, ईथ ये हो सकता है 8 to 10,000 पे चला जाए। ठीक है, वो मतलब ईथ आपको 10x नहीं दे सकता यहां से। ठीक है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट पकड़ लें जिनमें आपको लग रहा है कि ये 10x कर सकते हैं। हाँ, ईथ को आप उनके साथ स्वैप कर सकते हैं यहाँ पे। या ईथ अगर पहले मूव हो जाता है 45, 46 या 5,000 पे चला जाता है, वहां पे आप उस कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बिग मार्केट कैप्स के साथ स्वैप कर लें जिनका आपको लगेगा वो 5 से 10x कर सकते हैं। ये किया जा सकता है। हाँ, इथीरियम जो है वो 10x नहीं कर सकता। आई एम एग्री विद हिम। अगर तो वो सेल करना चाहते हैं कि इथीरियम मूव नहीं होगा, देन ही इज रॉन्ग, ही इज लिसनिंग भी। ठीक है, अगर तो वो समझते हैं कि इथीरियम यहां से मूव नहीं होगा, मार्केट मूव नहीं होगी, ही इज रॉन्ग। ठीक है, हाँ, अगर वो स्वैप करना चाहते हैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ जिनका उनको लगता है कि वो दूसरे प्रोजेक्ट जो हैं वो 10x 5x या 20x कर सकते हैं, फिर वो स्मार्ट मूव है। तो आई डोंट नो कि हमारे भाई साहब जो हमें क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो नो कंफ्यूजन एट दिस पॉइंट। कंफ्यूज उन्होंने करना है डेफिनेटली। हो सकता है इस महीने हमें छोटी सी एक मूवमेंट मार्केट में नजर आए क्योंकि BTC डोमिनेंस नीचे गिरी थी। अब अगर तो डोमिनेंस यही पे रहती है या थोड़ा सा और गिरती है तो वॉल्यूम ऑब्वियसली ऑल्ट्स में जाएगा, एक रैली मिलेगी ऑल्ट्स को। लेकिन अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पता नहीं कौन कौन से पापा की कैट, मामा की कैट, आंटी का कुत्ता, पता नहीं कौन कौन सी चीजें आके जो वो 500 मिलियन का मार्केट कैप लेके जा रही है। दैट्स व्हाट हैपनिंग। इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, जो पुराने हैं जिनको मैं फैट टोटल कहता होता हूँ, XRP, XLM, मैटिक, कार्डानो, यार उनसे जान छुड़वा लो। मैटिक शैटिक ये हम यू आर होल्डिंग एंड यू विल होल्डिंग देम, नो प्रॉब्लम, दे आर हैप्पी विद यू। डाकू कुत्ता बिलियन ये आई मीन समझ नहीं आ रही वो चीजें। कुछ ऐसी चीज आती है जिनका हमें पता भी नहीं होता। ठीक है, कोई ऐसी चीज आती है जिनका हमें पता भी नहीं होता और वो आई मीन निकलते हैं और मूव होते चले जाते हैं। उससे ये होता है जब मीन कोइन जो अनएक्सपेक्टेडली मूव हो रहे हैं, ये कुछ 8-10 ग्रुप्स हैं या 4 ग्रुप्स हैं जो मिलके ये वाली गेम चला रहे हैं। ठीक है, अब उस चीज को देख के मोस्टली लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं। उस चीज को देख के मोस्टली लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि शायद हमारे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो प्रोजेक्ट है ना वो मूव नहीं होंगे। यार होंगे, इनसे ज्यादा मूव होंगे। ठीक है, मीमी सीजन तो अब तो वो ये मीमी रहा ही नहीं यार। ये मीन सीजन जो है ये पूरा ही चलना है। ये अब साथ साथ चलता ही रहना है। व्हाट शुड वी बाय विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड होल्ड? यार स्मॉल इन्वेस्टमेंट को तो मैं ये कह रहा हूँ, जिन्होंने कुछ भी नहीं बाय किया हुआ स्मॉल इन्वेस्टमेंट वालों को चाहिए कि 2 से 3 प्रोजेक्ट वो ले लें, डिसेंट्रलाइज डेस्क टाइप के ले लें, 2 से 3 AI के पकड़ लें, 2 से 3 रॉ के पकड़ लें एंड गुड टू गो, और 2 से 3 मीन कॉइन भी पकड़ लें, 12 फिर भी बन जाने। ठीक है, 10-12 प्रोजेक्ट तो होने ही होने हैं। आपको कहे जी 2 प्रोजेक्ट ऐसे बता दे जिन्होंने कुछ ना कुछ कर जाना है, आई मीन आई डोंट नो। ठीक है, तो ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ ट्विटर पे चीजें आप लोगों से। लिनक्स मैंने बहुत जोर दिया था सबको जब ये आई मीन मार्केट कैप 2.5 मिलियन पे था, आज 5 मिलियन पे बैठा हुआ, डबल हो चुका है।
इल्यूमिनेक्स मैं बहुत दिनों से लोगों को कह रहा हूँ आपको, और एक पॉइंट ऐसा था कि वो 3 मिलियन पे भी आया था, लेकिन आई थिंक वो भी अभी 5 मिलियन पे। लिनक्स और इल्यूमिनेक्स जो हैं ये एक्सवाब, ये ऐसे प्रोजेक्ट है जिन्होंने आपको नजर आना है 200 मिलियन 300 मिलियन की रेंज में, ठीक है, नवंबर दिसंबर या जनवरी में। ये वही प्रोजेक्ट होंगे जिन्होंने आपको, आई मीन इनमें से कोई ऐसा होगा जो 500 मिलियन पे भी, 500 मिलियन के मार्केट कैप पे भी ट्रेड कर रहा होगा, हु नोज। उस दिन रोजी का जिक्र किया था, रोजी 2 मिलियन पे फिर रहा है। अगर वो 2 मिलियन से 100, यार वो भी एक मीन कॉइन है, ठीक है, लेकिन सिर्फ वो तब तक बूस्ट उसको नहीं मिलेगा जब तक उसका पूरा उसकी पूरी चेन जो है, जब तक रोज को अच्छा। देखिए रोज की एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जो है ना 3 दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया, गूगल के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई है। हाँ, रोज अगर $1 पे जाता है तो आई मीन रोजी को क्या प्रॉब्लम है 100 मिलियन मार्केट कैप की। यहाँ पे पता नहीं केड़ी केड़ी पापा मामा के डॉग आगे, पापा मामा की कैट्स आगे 500 मिलियन का मार्केट कैप करके जा रही हैं। तो रोजी को क्या प्रॉब्लम है? रोजी यहां से 100 मिलियन कर गया, वी गोना बी 50x। मैं नहीं कह रहा 500 मिलियन चाहिए क्या, ऑल वी नीड जस्ट पेशेंस, जस्ट टेक इट इजी, ठीक है ना। मतलब रश करने की जरूरत, वी डोंट हैव टू रश 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 रश। हाँ, एक स्ट्रेटजी जरूर लेके चलेंगे। अभी इसके बाद सबके क्वेश्चन होंगे, यार स्विफ्ट कॉइन इज स्टिल गुड, आई एम स्टिल कीप बाइंग स्विफ्ट। जब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसे आते हैं कोइन बेस के अंदर, ठीक है, तो मैं स्विफ्ट लेता रहता हूं। आई मीन आई स्टिल बिलीव द प्रोजेक्ट। कुछ भी मार्केट गैप नहीं है। कितना होगा जाहिद भाई आज स्विफ्ट का मार्केट गैप कितना है? हाँ हाँ, स्विफ्ट का मार्केट गैप वही 20 मिलियन। आई मीन चेंज वगैरह इधर उधर लेफ्ट एंड राइट, whatever you change is just keep throwing in Swift in Coinbase लेफ्ट एंड राइट, अपना चेंज इसमें डालते रहें। तो चेंज वगैरह इसमें डालने से Coinbase के अंदर एक चीज एक्यूमुलेट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। बाकी आपका पोर्टफोलियो बिल्ट हो रहा है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग, जिन लोगों के लिए KuCoin, MEXC या किसी और एक्सचेंज पे जाना हैक्टिक होता है, ठीक है। तो अगर मैं उनमें से एक हूं तो मैं अपने चेन से स्विफ्ट कॉइन जो है ना उसमें चांस लूं। हाँ, KuCoin में और MEXC में और बाहर वाली एक्सचेंजेस में मेरा पोर्टफोलियो बड़ा होगा, लेकिन मैं अपने चेन के साथ इस एक ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ लूंगा, मैं इसको बिल्ड करता रहूंगा। कभी 100 डाल दिया, कभी 200 डाल दिया, कभी 500 डाल दिया, समथिंग आई कीप पुटिंग इन दिस, ठीक है। हो सकता है आज इसका 20 मिलियन मार्केट कैप है, एट द मार्केट के टॉप पे ये 400-500 मिलियन का मार्केट कैप कर दे, मेरा जो चेंज है वो 20-30x हो जाए, और क्या चाहिए, ठीक है। सो आई मीन जो लोग कोइन बेस को ज्यादा पसंद करते हैं, मेरा ख्याल है कोइन बेस के उनको कोई 2 छोटे कैप के प्रोजेक्ट पकड़ने चाहिए और उनको बिल्ड करते हैं, और एक उसमें मिड कैप टाइप का ले लें। उसमें रोज भी पड़ा हुआ है कोइन बेस में, काफी सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। तो एक वहां पे मिड कैप टाइप पकड़ लें, एक स्मॉल कैप पकड़ लें, स्विफ्ट SWFTC है यार। दिस इज नॉट द मैटर कि किस प्राइस पे लेना है, आपने उसको एक्यूमुलेट करना है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है 10-20-30% की विंडो होती है अप एंड डाउन की, लेकिन यू आर गोइंग टू एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेशन में आपने उसको 2-3 महीने एक्यूमुलेट करते रहना है जब तक मार्केट मूव नहीं होती, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कोइन बेस में, मैंने आज एक दोस्त को भी कहा था, मैं कहा यार, बल्कि मैंने एक शेख साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा यार, उन्होंने कहा मेरे को फ्रेंड है, उन्होंने जस्मी में फलां प्रोजेक्ट में अच्छे पैसे बनाए, मैंने उन्हें कि वो सेल किया तो जाके स्विफ्ट कॉइन ले लें और चिल मारे। तो यहाँ पे अगर चेंज भी आप किसी चीज में डालते हो और वो 8 महीने बाद 10x कर जाता है, यार कौन सा ऐसा बिजनेस है? मसला सिर्फ ये है हम लोग 10x को कुछ समझते ही नहीं। 6,000 डाला हुआ किसी चीज में, वो 10x हो तो जब 60,000 निकाले हैं। अमेरिका में 50 से 60,000 जो है ना वो साल की सैलरी होती है लोगों की, जो एक नॉर्मल जॉब्स करते हैं। $50,000 मतलब पुलिस की जॉब यहाँ पे मोस्ट रिस्की जॉब है, तो उसकी सैलरी मेरा $60,000-65,000 साल की सैलरी होती है। तो यार 5,000 अगर आप किसी चीज में चेंज डाल के उसको 5,000 पूरा कर देते हो ना, मतलब 200 300 400 200 300 400 का लेते रहते हो, और वो 5-6,000 का हो जाता है। अगर वो 10x कर दे, $60,000, दैट्स लॉट ऑफ मनी। जो से मर्जी जाके बैंक के आगे $60,000 रखें, आपको घर की फाइनेंसिंग हो जाएगी यूं करके। लेकिन हम लोग कहते हैं यार सारी चीजें एकदम ही आ जाए, ऐसा नहीं होना, थोड़ा टाइम दे। जितनी बातें मैंने आपसे जर्नल टॉपिक आपसे डिस्कस करता रहा ना, क्रिप्टो के फंडामेंटल्स या टेक्निकल के अलावा जो जर्नल डिस्कशन हम करते रहे ना अगस्त और सितंबर में, हम लोग इसी पॉइंट पे आए हुए हैं, और वही जर्नल डिस्कशन हो रही है अब। और जो अगस्त सितंबर में मैंने बातें की थी वो अक्टूबर टू मार्च सारी आपने सब लोगों ने कहा जी 90, किसी ने कहा जी 90%
आपने ठीक कहा था, किसी ने कहा 95%, किसी ने कहा नदीम भाई यू वर राइट, किसी ने कहा जी आप 80% ठीक थे। अब जो बातें आज हो रही है ना, नवंबर में जाके आप लोगों ने यही कहना है कि जो मई जून में बातें हो रही थी वो आज पूरी हो रही हैं। So, you don't have to be, you don't have to get confused for nothing। मैं बता रहा हूं, चीजें बिल्ड की हैं, बिल्ड करते चले जाएं। यू गोना सी अ बिग ह्यूज क्रेजी स्टूपिड मूव इन द मार्केट। और बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जो मुझे उस वक्त पूछ रहे होंगे जब ये स्विफ्ट कॉइन अभी 5 पे ना, ये 10 पे चला जाएगा, यहाँ से डबल हो जाएगा जहां से हो के आया। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे होंगे क्या नहीं बाय स्विफ्ट नाउ, जब इसके प्राइस डबल हो चुके होंगे। ठीक है, तो उस चीज का वेट ना करें। इफ यू कैन अफोर्ड, कीप एडिंग द गुड प्रोजेक्ट्स इन योर पोर्टफोलियो। कुछ आई मीन स्मॉल कैप की तरफ चले जाएं, थोड़ा सा रिस्की पोर्टफोलियो बना लें, और कुछ मिड कैप की तरफ चले जाएं। ठीक है, स्मॉल कैप तो मैं आपको काफ़ी सारे बताता ही रहता हूँ जिनका मुझे लग रहा होता है, क्योंकि कम्युनिटी जो है वो लोग यही देख रहे होते हैं कि हमें 30x चाहिए या 50x या 100x वाला चाहिए। आपसे उस दिन मैंने एक जनरल बात की थी, अभी थोड़ी देर पहले भी की है यार। अगर रोज $1 पे चला जाता है, मीन कोइन पंप हो रहे हैं, चले मीन कोइन की बात कर रहे हैं ना। एक अभी किसी ने मुझे आज ना आई डोंट नो ट्विटर पे कहीं किसी ने मुझसे एक कमेंट भी किया ना कि अच्छे अच्छे मीन कोइंस के ऊपर बात करेंगे। यार मीन कोइन जो आता है किसी को नहीं पता होता कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। ठीक है, ये कुछ ग्रुप्स हैं जो उसको शुरू में पंप कर रहे हैं, 8-10 भी नहीं होंगे, ये कुछ 4-5 ग्रुप्स होंगे जिनमें नंबर 1 पे ये बिनांस वाले होंगे, इसके पीछे मोस्टली वो ग्रुप होगा। इसको हाइप देते हैं, 300-400 मिलियन पे ले जाते हैं। वहां पे ये होता है, वहां पे आप मैं, ठीक है, वहां पे जो रिटेलर्स हैं वो उस लेवल पे आके मोस्टली उसको खरीदते हैं, और जिन ग्रुप्स ने उसको 10 मिलियन 15 मिलियन के मार्केट कैप से उठा के 400-500 मिलियन के मार्केट कैप पे ले जाते हैं, वो वहां पे एग्जिट कर जाते हैं। अब वो मीन कोइन वहां से 10-15% नीचे आता है, क्योंकि वो जो ग्रुप्स हैं जो मार्केट मेकर बने हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो आई मीन कोइन वही पकड़ें जो किसी बड़े इकोसिस्टम के साथ अटैच हो। ठीक है, जिसको कोई ऑन कर रहा हो, और किसी ऐसे मीन कोइन में आई मीन इन्वेस्ट ना करें जिसका ऑलरेडी मार्केट कैप बिलियन से अबव हो चुका हो। अगर करना भी है तो आई मीन इट्स योर चॉइस, मैं नहीं करूंगा जाके। अभी किसी ने मुझसे ट्विटर पे पूछा ना, मैंने आज एक ट्रेड पोस्ट की, तो उसने मुझसे पूछा कि इसको इस प्राइस पे लेना चाहिए। मैंने कहा यार 3 बिलियन मार्केट कैप है, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया हुआ, हिट होता है तो फाइट ना करना, निकल जाना। आई मीन 3 बिलियन पे कुछ चीज ऑलरेडी 3 बिलियन पे है, 3-4 बिलियन मार्केट कैप पे कोई मीन कोइन है, मैं नहीं उसको लूंगा। हाँ, मैं उसकी लॉन्ग और शॉर्ट में जाऊंगा, उसका स्टॉप लॉस रखूंगा 5% पे। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा मैं स्टॉप लॉस दे के बाहर आ जाऊंगा, आई एम गुड। फाइट नहीं करूंगा उसके साथ, क्योंकि वो 3 बिलियन पे है। उसके 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 बाद नीचे बहुत बड़ी विंडो है, ऊपर विंडो छोटी है। तो जिस प्रोजेक्ट में आपको नजर आ रहा हो कि नीचे की विंडो बहुत बड़ी है, बहुत लंबा पंप लग चुका है, आई डोंट थिंक सो कि उसके साथ फाइट करनी चाहिए। उसमें आपका 4-5% पे स्टॉप लॉस हो, अगर वो हिट हो गया, एग्जिट, यू कैन फाइंड समथिंग एल्स टू डू। समबडी महबूब भाई कह रहे हैं लव यू ब्रो, यू आर ग्रेट डूइंग। ठीक है, तो चीजें हमें यहां पे ये चाहिए जो मैं बात कर रहा हूं, अपने आप को बिल्ड करें, वाइब्स अपनी जो हैं उनको पॉजिटिव रखें और अप रखें। अप टारगेट वही रखें, कोई टारगेट चेंज नहीं करना हमने, किसी टारगेट को चेंज नहीं करना, जो जो आपके टारगेट्स हैं वही हैं। जिस बंदे ने अपने पोर्टफोलियो का टारगेट 5x बनाया हुआ है, कीप इट, स्टिक विद इट। जिसने अपना पोर्टफोलियो का टारगेट 10x बनाया हुआ है, स्टिक विद इट। अगर किसी ने अपने प्रोजेक्ट का अपने अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अपनी पोर्टफोलियो के हिसाब से, अगर किसी ने अपने पोर्टफोलियो का टारगेट 20x बनाया हुआ है, कीप इट, स्टिक विद इट। ठीक है, क्योंकि वो जो मूव है जिसने आपके पोर्टफोलियो को 5x 10x 15x 20x या 30x करना है, वो मूव तो अभी मार्केट में आई ही नहीं है। why would I have to confuse? I'm not gonna be confused for anything. वो मूव तो अभी आई नहीं है। ठीक है, वो मूव अभी आनी है। तो एक चीज है, आज मैं एक सजेशन जरूर दूंगा आप लोगों को,
एक मशवरा ज़रूर दूंगा, उसकी मैं ऑलरेडी काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। शिबा इनू ऑन सोलाना, यार सोलाना में पता नहीं, वी आर वेटिंग फॉर दैट मूव। जी मियाँ साहब, वो मूव आ रही है, फिक्र ना करें, वो मूव तो भी आनी है। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो जो आपने अपने पोर्टफोलियो के टारगेट्स बनाए हुए हैं, जो जो आपके गोल्स हैं, किसी भी चीज़ को कम ना करें। कभी भी ना ये कहें कि यार मेरा पोर्टफोलियो तो मुझे लग रहा है 5x भी नहीं होगा। हाउ यू कैन से दैट? किस तरह आप ये कह सकते हैं? क्या कोई अलादीन का चिराग है आपके पास? बताओ ना मुझे कि फ्यूचर प्रिडिक्टर हैं आप? नो। तो जो आपका टारगेट है भाई, उसको वहीं पे रखो, बल्कि उसको 2x और ऊपर ले जाओ। मैं सही कह रहा हूं आप लोगों को? कुछ लोग तो कह रहे होंगे ये एक जस्ट एक फिक्र है। अभी जिस मूव ने, मार्केट मूव ने आपके पोर्टफोलियो को एक्सेस करवाने हैं, वो पूरी की पूरी मूव तो भी बाकी है। ठीक है, वो मूव तो भी आनी है। सजेशन एक देना चाहूंगा आज। कोई एक ट्रेड, कोई एक ऐसी ट्रेड, अपना पूरा पोर्टफोलियो एक साइड पे रखें, ठीक है? कोई एक ट्रेड आप अपनी ऐसी रख लें जिसको आपने फुल रिस्की लेवल पे खेलना है। कोई एक ट्रेड, चाहे वो 100 रुपए की है, चाहे वो 1000 की है, चाहे वो 10,000 की है, अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। मेरा ख्याल है कोई रीजनेबल कोई एक ट्रेड ऐसी रख लें, जब तक मार्केट पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में है, आपने उस एक ट्रेड को एवरी 1x 2x के साथ फ्लिप करते चले जाना। कोई एक ट्रेड रख लें इस तरह की, लाइक कुछ स्मॉल कैप कोइन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई स्मॉल कैप चीज है, कोई स्मॉल कैप प्रोजेक्ट है। थैंक यू फॉर द लव। ये रोज और जो भेज रहे हैं, न्यूयॉर्क भाई जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई एक प्रोजेक्ट, लेट्स से आपने उसमें $500 ऐड किए हैं, ठीक है? वो आपका 500 से, कोई एक ट्रेड होनी है सिर्फ, ये 500 से वो बना देता है जी $1,500, ठीक है? कोई एक आप डिसाइड कर लें, आज मेरे साथ मिलकर डिसाइड कर लें, ठीक है? या हम लोग भी एक ऐसी ट्रेड पकड़ लेते हैं, वो पता क्या होता है, स्मॉल कैप हम कर नहीं सकते। स्मॉल कैप में हम जाएंगे तो वो बेचारे ने मूव होगा तो वो, अगर हम उसमें 2000 लोग हुए ना, वो डंप हो जाएगा। कोई अपनी मर्जी से आप, क्योंकि हम सब एक को नहीं पकड़ सकते। लेट्स से आपके पोर्टफोलियो में 40 प्रोजेक्ट हैं, या आप कोई 40-50 अच्छे प्रोजेक्ट्स को आप जानते हो, आपकी थोड़ी बहुत उनके ऊपर रिसर्च है लेफ्ट एंड राइट से। थैंक यू फॉर द लव, थैंक्स फॉर ऑल दीज गिफ्ट्स। चाल फतेह ठहर जा तू जरा। कोई एक ट्रेड आप ऐसी रख लें अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में, जिसका मैं एक इसकी कैलकुलेशन आपको बताने लगा। लेट्स से आपने $500 से कोई ट्रेड ली है, वो आपको $1,500 दे देता है, ठीक है? थोड़ा सुन लें जरा। या 100 से ली है, मैं 500 रुपए की रीजनेबल अमाउंट होती है, उससे कैलकुलेट करता हूँ। मियाँ साहब 500 रुपए का रीजनेबल अमाउंट है आपके लिए, ठीक है? उन्हें नहीं कहना मेरे को 500 भी नहीं का। नहीं अन्य को आने बेफिक्र रहो। $500 से एक रीजनेबल ट्रेड आपने स्टार्ट की। मैं आपको फिर वो कह रहा हूं, आपकी रिसर्च इनफ है, ठीक है? उस ट्रेड के ऊपर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, डरना नहीं है, ठीक है? डरना नहीं है, उसको ओपनली खेलना है। मैं फिर अगेन मैं क्लियर कर दूं, आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एक साइड पे है। ये जो ट्रेड मैं बताने लगा हूं, या ये जो स्ट्रेटजी बताने लगा हूं, या जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, या जो हम लोग कोई 10-20 लोग मिलकर ये करेंगे, एक ट्रेड पकड़ लें, स्ट्रिक्टली 500 की आपने अगर ट्रेड ली है, अगर वो $1,200 या $1,500 हो गया, उसको सेल आउट कर दें, चिल होकर बैठ जाए साइड पे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लेफ्ट राइट सारी बातों को सुने, देखें, कुछ चार्ट की स्टडी करें, कुछ लेफ्ट एंड राइट से चीजें देखें, ग्रुप में चीजें देखें, कौन सी ऐसी ट्रेड है जो बॉटम हो चुकी है और वो आपको डबल कर सकती है।
स्ट्रिक्टली इस प्लान के साथ स्ट्रिक्ट हो जाना आपने, ओनली वन ट्रेड। जितने पैसे आपने पिछली ट्रेड में से बनाए हैं ना, वो सारे के सारे पैसे सिंगल ट्रेड में ऐड कर दो, लेकिन सोच समझ के प्रोजेक्ट पकड़ना है। आपने इसको एंड तक खेलना है, दिसंबर या जनवरी तक, मार्केट के टॉप तक आपने इसको खेलना है। एक ट्रेड में आपका 500 से 1500 बन गया, वो 1500 पूरे का पूरा आपने अगली ट्रेड में एंटर कर देना। मिड कैप पकड़ लें कोई, जैसे ही वो 1500 का डबल होता है, 3000 होता है, आपने लेफ्ट राइट नहीं देखना, 3000 हो जाए, 2800 हो जाए, 3500 हो जाए, 1500 का या 4000 हो जाता है, एग्जिट करें। उसी वक्त फॉरेन ट्रेड नहीं लेनी, उस यूएसडीटी को पड़ा रहने दें। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन अपना लेफ्ट एंड राइट देखें कि मुझे ये सारे के सारे पैसे लेके कौन सी अगली ट्रेड में एंटर होना है। फिर जो चीज आपको अच्छी लगे, जिसमें आपकी रिसर्च थोड़ी सी इनफ रिसर्च हो, 1-2 ग्रुप्स को देखें, ट्विटर को खंगाले थोड़ा सा, जिस चीज पे आपका दिल सेटिस्फाई हो ना, वो सारे के सारे पैसे आप अपनी तीसरी ट्रेड में एंटर कर दें। मियां साहब 4000 बनाया है, तीसरी ट्रेड में एंटर करें, जैसे ही वो डबल होती है, 50% होती है, 100% जाती है, 120% जाती है, एग्जिट करना। इस तरह से 10 ट्रेडें आपने, 12 ट्रेड, 8 ट्रेड आपने फ्लिप करनी है अगले 6 से 8 महीने में। वो पैसे सेपरेट रखने हैं, उसका आपके पोर्टफोलियो के साथ ताल्लुक नहीं होगा स्ट्रिक्टली। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि अगर आप 500 से शुरू हुए, अगर कोई 10-12 हजार रुपया हो गया तो आप उसमें 2000 रुपये साइड पे लगा दें, लेकिन स्ट्रिक्टली आपने उसको फ्लिप करते चले जाना है। और ये भी नहीं करना, मैं ये बता दूं, सिर्फ एक ट्रेड। आई मीन ये कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे यार ये स्टूपिड स्ट्रेटजी है। इट्स नॉट स्टूपिड स्ट्रेटजी, ये क्रेजी स्ट्रेटजी है, ठीक है। ये एक आध होनी चाहिए, एक आध ट्रेड ऐसी होनी चाहिए। आपने सिर्फ देखना ही है आप उसको लेके कहां से आ रहे हैं, 500 से लेके आ रहे हैं, 1000 रुपए से लेके आ रहे हैं। तो अगर आपकी उसमें फ्लिपिंग में 10 ट्रेड भी लग जाती है ना, यू कैन कैलकुलेट योर प्रॉफिट। कोई एक ट्रेड ऐसी आपने स्टार्ट करनी है सब ने, जिसका ताल्लुक आपके पोर्टफोलियो के साथ नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर। जैद भाई क्या समझ आ गई ना? जी एक जी साथ बिल्कुल, जैसे हमने किया था डेंट टेल और ईटीएल ट्रेड के ठीक है। साथ। अमीन वो तो हम टॉप पे कर रहे थे ना जाके, 2021 के अमीन मार्केट टॉप कर रही थी। तो ये मशवरा, ये सजेशन ले लें या ये स्ट्रेटजी ले रहे, मैं अभी इनको बता रहा हूं। और यहां पे मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्टूपिड स्ट्रेटजी है, ये क्रेजी स्ट्रेटजी है, ये डम स्ट्रेटजी है, ये बुलशिट स्ट्रेटजी है, ये सारा कुछ ही है। और ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है, ये इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ये समझ लें आपने 15, 16, 20 चीजें डाल दी और चाय बना दी आप लोगों ने, पता नहीं कौन पिएगा कौन नहीं पिएगा। चाय जो सी जैसी मर्जी बना लें, और भी पिए ना पिए, शेख अबू बकर आके चाय पी जाएगा पूरा, बिल्कुल। डजंट मैटर व्हाट टाइम इट इज। रात के 12 बजे इसको पूछोगे चाय पीनी होगी, जी लाओ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਦੇ ਚਾਹ। तो मैं बार बार, मियां साहब मैंने मेरा ख्याल है 10 दफा ये लफ्ज रिपीट कर दिया है कि जो मैं ये स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये स्टूपिड है यार, 1000 रुपए से 1000 बन गया, बस करो चले जाओ। नहीं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू गॉट टू हैव वन स्टूपिड ट्रेड, you got to have one stupid strategy in your portfolio. You got to have one bullshit and stupid strategy trade in your portfolio. और यार क्रिप्टो है ये, ठीक है। who knows कि आप 1000 रुपए से चले, उसको फ्लिप करते चले जा रहे हैं, वो कल को $100,000 बन जाए, 1 लाख रुपए बन जाए। who knows, ठीक है। keep that in your mind. I'm telling you again, इस ट्रेड का आपके पोर्टफोलियो के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। कोई बंदा मुझे आगे अगर बाद में कहेगा जी नवीन भाई आपने कहा था, मैंने आपके बात सुन के आपकी स्ट्रेटजी से एक ट्रेड ली थी, मैंने पूरा पोर्टफोलियो उसके अंदर डाल दिया और वो डंप हो गया, मैं फिर जूता उतारूंगा, आई एम सॉरी टू से दैट, मारूंगा 10 और गिनूंगा इतनी जी। ਹਾਂਜੀ ठीक है। सॉरी टू से दैट, मेरे से बड़े लोग बैठे हुए हैं, फीमेल्स भी बैठी हैं, तो माइंड नहीं करना। इट्स जस्ट अ सेइंग, ठीक है। किसी को कुछ कह तो नहीं सकते ना। मैं एक बात कर रहा हूँ, व्हाट्स योर स्टूपिड ट्रेड? यार मेरी स्टूपिड ट्रेड जो है ना इस टाइम पे, चले मैं शेयर भी कर देता हूँ।
स्टूपिड ट्रेड पेपे 2 है, स्टूपिड ट्रेड मेरी पेपे 2 है इस टाइम। ठीक है, मैं जून की 15 या चलें इकट्ठे ही कर लेते हैं यार, खैर जून की 15 या 20 तारीख को तक मैं पेपे 2 को होल्ड करूंगा। इसका मैंने ट्विटर पे एक चार्ट पोस्ट किया हुआ है। लो, मैं आप लोगों के साथ बात करते करते ना पेपर 2 का टॉप चार्ट भी ट्विटर में सिर्फ चार्ट ही डाल देता हूँ, लिखूंगा कुछ नहीं फिलहाल, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। let me share that। आप लोग अपनी फोन पर अभी मेरा आपको अभी तो वो गिर रहा है। मतलब जिस दिन हमने पेपर 2 के बारे में बात की थी उस दिन के बाद बड़ा इसने तगड़ी मूव की थी। आई मीन मेरे ख्याल 40-50% की या उससे भी ज्यादा की मूव कर गया था। आई थिंक हमने इसको जिस दिन बातें कर रहे थे पेपर 2 के बारे में, जब मैंने चार्ट वार्ड आपको दिखाया था तो ये 5 पे था, उसके बाद ये 10 पे चला गया था, डबल हो गया था ऑलमोस्ट। अच्छा, पेपर 2 की ये जो मेरी स्टूपिड ट्रेड है ना, स्टूपिड ट्रेड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पेपर 2 से स्टार्ट हो गई। अभी ये गिर रहा है, अभी ये मुझे लग रहा है कि ये सम पॉइंट इसका पेपर 2 का बॉटम जो है ना, ये 54-55 तक जा सकता है। आई मीन वहां से एक स्टूपिड ट्रेड इसकी बना लें, इसमें शुरू कर दें, उसी को फ्लिप करते चले जाएं। ठीक है, पेपर 2 बड़ा तगड़ा ब्लास्ट करेगा। और इसको स्टूपिड ट्रेड ये कह रहा हूं कि इसको आई मीन कोई बंदा ये ना कि पेपर 2 को 1-2x पे बेचना है। इसको आपने 15 से 20 दिन, जून का महीना इसको रखना है आपने। मैं चार्ट शेयर करने लगा था ट्विटर पे, चार्ट डालने लगा था, फिर बातों में भूल गए हैं, बातों में भूल जाते हैं, बाद में से हटा दूंगा, पड़ा भी रहे तो इट्स ओके। ये लो, ये मेरा चार्ट है पेपर 2 का, तो ये कुछ भी कर सकता है। लाइव लंबी तो नहीं होगी आज ज्यादा, घंटा हो गया, 1 घंटा 10 मिनट। नहीं 2 घंटे तक चलेगी इंशाल्लाह। नहीं बस बस मियां साहब ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਅੱਜ। मैं शेख साहब रोज ही वेला होना, मेरे को रोज आ जाया करो। ठीक हो गया। मैं रोज ही वेला। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਿयां ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਔਖਾ क्या ਕੰਮ। बिल्कुल, ये ना आखे हुन छड्डी ना। somebody saying 5,000 का पेपर 2 है। अच्छा, मैं कहूंगा 6 दिन ਕੰਮ ਤੇ ਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ। बस ठीक हो गया। 6 दिन ਵਿਹਲੇ ਆ ਤੇ 4 ਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। साडी आज छुट्टी, साडी हफ्ते छुट्टी होंदी है, साडी आज छुट्टी सी। अच्छा फिर ठीक है जी। तो ये जो स्टूपिड ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये पेपर 2 है। इसको इसके साथ 10-15 दिन आपने प्ले आउट करना है, 15 दिन जून का महीना। तो स्टूपिड ना कहें यार मैं स्टेक साहब हमने एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आपको नहीं पता। वो ठीक है, मैं कह रहा पेपर 2 को स्टूपिड ना कहें। पेपर 2 को नहीं कह रहा, स्टूपिड एंड डम स्ट्रेटजी हम एक लेके आए हैं। ठीक है सही है ओके। जिस तरह आजकल वो पापा की बिल्ली, अब्बू की कैट, मम्मा का डॉग, पॉप कैट, पता नहीं क्या 400-500 मिलियन का मारा पापा की पड़ी। तो हम भी एक ट्रेड का नाम रख लेते हैं, स्टूपिड ट्रेड। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर लें। 3-4x 5x जैसे पेपर 2 आपको नजर आए, पेपर 2 जो है वो मैं समझता हूँ कि 3 से 5x कर सकता है बड़े आराम से। बाद चार्ट मैंने पोस्ट कर दिया, चार्ट के हिसाब से तो बहुत लंबी ट्रेड है। उसमें जितने पैसे आपके निकलेंगे ना, वो सारे के सारे पैसे आपने एक ही प्रोजेक्ट डिसाइड करना, उसमें डाल दो। जैसे वो डबल करे या 80% करे या 200% करे, उसको सेल करके पैसे फौरन आपने यूज नहीं करने। 2-3-4 दिन उसको रख के आपने जज करना है मार्केट के लिए किसमें आपको जाना चाहिए। बस वो आगे से आगे उसको फ्लिप करते रहना है। आपकी ट्रेड का ताल्लुक आपके पोर्टफोलियो के साथ नहीं होगा। आई एम सेइंग दैट अगेन। तो जिसने बाद में मुझे कहा ना कि जी पेपर 2 में मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो देख के डाल दिया था, नहीं भाई आपने कहा है बस फिर उनकी शामिल नहीं होना, एड्रेस ला के मैं पहुंच जाऊँ, माल बंदे 20 लेके आने हैं साथ कम अज कम। मारने के लिए कि वैसे पैसे लेने के लिए? अच्छा मैं मुझे पैसे लेने वाले चाहता। पैसे नहीं, पैसे लेने, पैसे ये देने वाले हैं। नहीं ये वो लोग हैं हमारे, गुस्सा नहीं करना किसी ने,
जब मार्केट टॉप हो जानी, जिसने मिलियन में आया उन्होंने कहना भाजी मैं तो 70,000 बनाया है, जिसने 70 बनाना उसने कहना 3,500 प्रॉफिट हुआ। ऐसे मियां साहब बड़े बड़े जबरदस्त नंबर बताने हैं लोगों ने, याद रखना है मेरी बात। नहीं साथ में सेंट नदीम भी भाई बताएंगे, मैं सेंट भी। नदीम भाई मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਾਂਦਾ। कुछ ऐसे हमारे दोस्त भी होंगे जिनका पोर्टफोलियो 3 लाख का होगा और वो कह रहे होंगे यार नदीम भाई मैंने 27,970 पे कैश आउट किया। ऐसे ऐसे नंबर आएंगे आपको, 29,535, 32,636, ऐसे ऐसे नंबर लोग बताएंगे कि आप कन्विंस हो जाएंगे यार बंदा बड़े कैलकुलेटेड नंबर बता रहा है, तो ये सही कह रहा है। नहीं भाई ये नंबर जो होता है ये बिजनेस पार्टनरशिप पे होते हैं, बिल्कुल यकीन दिलाना, इतना ही प्रॉफिट है, इतना ही प्रॉफिट है। शेख साहब ये अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहता, मैं अक्सर वो मजाक करता हूँ कि जिस स्कूल में इनको पढ़े हुए ना मोस्टली लोग, हमने उनकी दीवारों की ईंटों के बिल हमने पास किए हुए हैं। तो ठीक है भाई, आज ट्रेड होगी। अब बात हो रही थी बैग्स की कि बैग्स की मैंने कोई 2-3 पोस्टें की हैं। अच्छा, बैग्स की मैंने जो पोस्ट की है उस पोस्ट का किसी पोस्ट की ये अटेंशन नहीं है कि हम बैग्स की कोई फड क्रिएट करें या हम बैग्स के हवाले से कोई नेगेटिविटी जो है ट्विटर पे फैलाएं, ठीक है। या डीसीए कर लो ओआरडीएस को, यस थोड़ा सा कर लो, सारा ना करना। अगर 4 सेंट पे जाएगा तो ऑल इन हो जाना। बैग्स की जो है ना, थोड़ा सा उसकी टीम को, सीईओ को मैं उनको ये रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ मिलेंगे, किसी ने नेगेटिव पोस्ट नहीं करनी बैग्स के बारे में, ठीक है। पोस्ट करें, आप ट्विटर पे ट्वीट करें, नेगेटिव पोस्ट नहीं करनी। उनको सिर्फ ये रियलाइज कराना है कि भाई तुम लोगों की पहचान जो है, तुम लोगों के ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो बैग्स है, और रेडिफाई जो तुम्हारा है उसको रेडी करो, उसको साइड पे लगाओ और अपने असल प्रोजेक्ट के ऊपर तवज्जो दो। अपने असल प्रोजेक्ट्स की जो चीज़ें आपने छुपा के रखी हुई हैं या जो आपके पास अपडेट्स हैं या जो जो आपने को गिद्दड़ सिंह की बैग्स के हवाले से बना के रखी हुई है, दिस इज द टाइम उसको बाहर लेके आओ। मैं ये बात कर रहा हूं बैग्स के हवाले से, उसके सीईओ को, उनको हमने ये रियलाइज करवाना है, ठीक है, कि अगर बैग्स डाई होता है, हमने ये भी किसी ने लिख देना है कि अगर बैग्स डाई होगा तो तेरा रेडिफाई तो मरा ही मरा और तू भी खत्म हो जाएगा, तेरा क्रिप्टो में कोई करियर नहीं है। तो पे अटेंशन ऑन योर प्रोजेक्ट। उस पे मतलब उनके पास बहुत सारी अपडेट्स हैं। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, मेरा ख्याल है कि ये लोग इन्होंने पैसे बना लिए हमें। पिछले साल मार्च के महीने में जो बैग्स ने मूव की है, दैट वाज क्रेजी, 22x। हमें क्या पता बैग्स की टीम ने वहां पे मिलियन निकाला या 10 मिलियन निकाला है, क्योंकि उसने वॉल्यूम एवरी डे 3 से 4, 6 मिलियन, 5 मिलियन का वॉल्यूम था। पैसे उन्होंने बना लिए हैं बैग्स में। सिर्फ हमने उसको ये रियलाइज करवाना है कि इफ यू थिंक यू डन विद बैग्स, दैट मीन्स यू आर लिटरली डन फ्रॉम द क्रिप्टो। तेरा कैरियर खत्म हो जाएगा क्रिप्टो में। हमने ये चीजें उसको डिफरेंट वर्डिंग, डिफरेंट हमने चीजें टाइप करनी है, लिखनी है अपने हिसाब से, लेकिन नेगेटिव किसी ने नहीं लिखना, ठीक है ना। किसी का माइंड है ना, उसको पिंच करते रहो। लास्ट टाइम एक बार मैंने इनके साथ ऐसा किया था, शायद आप लोगों को पता हो। उसके बाद इन्होंने क्रेजी अपडेट्स दी थी और बड़ी इन्होंने तगड़ी कैंपेन चलाई थी। उसके बाद मेरी मतलब इनसे हमारे पूरे ग्रुप की लिटरली मतलब फोन पे भी बात हो गई, आर्गुमेंट भी हो गए। फिर बाद में फोन पे उनके किसी लोगों ने मुझे कॉल की, हमारे कुछ लोग इधर से थे, चले वो मामला सॉर्ट आउट हो गया कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा जी हमें आपसे सिर्फ चाहिए अपडेट्स, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें सारी हमें बताएं, हमारी कम्युनिटी को बताएं, अपनी कम्युनिटी को बताएं। उसके बाद प्रोजेक्ट को बड़ा बूस्ट मिला था। हमने सिर्फ उनको पिंच करना है, ठीक है। बहुत काम किया उन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर, वो बहुत सारी चीजें ऐसी रख के बैठे हुए हैं। आज से 1.5 महीना पहले मैंने कहा था कि वो उनको पता है कि हमारे ग्रुप में मोस्ट लोगों ने बड़ी बड़ी होल्डिंग की हुई है, ठीक है। असल में वो हमारी जो मोनोपोली है ना बैग्स की, उसको खत्म करना चाह रहा है वो बंदा। तो उसको ट्विटर पे हम थोड़ा जलील करते हैं टेक्निकल तरीकों से, टेक्निकल वर्डिंग से, जो लफ्ज जो हैं उसको तंग भी करें और फट भी ना फैले।
समथिंग लाइक दैट यूज करनी है आपने। पिंच करना है, गला नहीं दबाना। हाँ जी, वही कह रहा हूं, पिंच करना है, गला नहीं दबाना। बिकॉज हमारे पास बड़े बड़े बैग्स हैं, हमने उसकी फट नहीं फैलानी। पिंच करने से ये होगा, सम पॉइंट उसका प्रोजेक्ट है, वो सोचेगा यार ये इतनी बड़ी कम्युनिटी है, किस किस को ब्लॉक करूंगा। वो ब्लॉक करेगा तो खुद ब्लॉक करेंगे ना, हमें ट्विटर पे तो नहीं ना रोक सकते पोस्टिंग करने पे, तो ऑटोमेटिकली वो कोई ना कोई अपडेट लेके आना शुरू हो जाएगा। वो टीम जो है आपस में डिसाइड करेगी कि ये फिर शुरू हो गए हैं, इन्होंने बाज नहीं आना, तो जो जो हमने चीजें रखी हुई हैं आहिस्ता आहिस्ता रिवील करो, एंड दे विल। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी थी अब बैक्स की टीम को थोड़ा सा दबाने की। दैट्स इट। मतलब ऐसा नहीं कि बैक्स भाग रहा है मेरी नज़र में, या कोई बुरा प्रोजेक्ट है या कोई ऐसी बात है, उसको हमने थोड़ा सा पिंच करना है। उसके बाद VRA, आपको पता है उनकी टोकनैमिक्स के रोले थे, कुछ टीम में नेगेटिव हो गई, और वो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। ठीक है, यू स्टिल सी BTC, अभी BTC की बात कर लेते हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को चला रहे हैं। ठीक है, VRA मैंने खुद रखा हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हम एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर पूरे का पूरा अपना पोर्टफोलियो का टारगेट कभी भी हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं रखते। ठीक है, VRA हो गया, MTV हो गया, बैक्स हो गया, सारे पुराने प्रोजेक्ट है। ठीक है, MTV वालों ने पिछले शोर डाला तो हुआ था कि हम AI में आ रहे हैं, हम लोग रॉ में पता नहीं आ रहे हैं, कुछ काफी दौड़ उन्होंने एकदम शोर डाला था उन्होंने आगे फरवरी में, मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी सी मुंह भी दिखाई, फिर ठंडे होकर बैठ गए MTV वाले। तो MTV में कहूंगा जिस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम ब्रेक इवन पे निकल गए थे ना फरवरी और मार्च में, MTV में अगर इस टाइम अगले महीने 2 महीने 1 महीने में कोई अच्छी मूव आती है, आप ब्रेक इवन पे होते हैं, मेरा ख्याल है उसको बाय बाय कर देना चाहिए। MTV की इन्वेस्टमेंट जो है आप मेंडी में ले जाएं, लेनिक्स में ले जाएं, XSwap में ले जाएं, MTV को आप रियो से स्वैप कर लें, रॉ का प्रोजेक्ट जो है, लैंड से उसको कर लें, मिड कैप टाइप है बोसन प्रोटोकॉल से कर लें। ठीक है, जो मूव नहीं हो रहे, मैं आपको ये 5-6 सजेशंस दी हैं, और भी हैं चीजें। तो पुराने जो नहीं मूव हो रहे, या तो ब्रेक इवन करके निकल जाएंगे उनमें से, जिस तरह के एस की हमारा बॉस अब फंस गया था मार्च में, उन्होंने एक अच्छा नैरेटिव, मतलब रॉ के नैरेटिव में आग उन्होंने एक प्रोग्रेस शो की। ठीक है, उन्होंने अपने आप को अपडेट किया और उन्होंने कन्विंस किया मार्केट को कि रॉ के ऊपर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं और हम कर सकते हैं ये चीजें। तो उसका मतलब एक अच्छा वॉल्यूम एसकी में आया, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बना के निकले, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने DCA किया हुआ था उन्हीं की बात कर रहा हूं, बी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा DCA किया हुआ था, वो लोग प्रॉफिट बना के निकले, बहुत सारे ब्रेक इवन पे निकल के उन्होंने नई चीजों में अपने आप को मतलब अपडेट कर लिया। ये चीजें हैं। तो किसी के ऊपर ब्लेम करना, किसी एक बंदे के ऊपर जाके, तो ये कुछ सेंस नहीं बनती। हाँ, मशवरा कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ब्लेमिंग वाली स्टोरी जो है ना, इज टू ओल्ड। ये बच्चों वाली स्टोरियां होती हैं। तो बच्चे जो हैं वो बच्चे ही होते हैं, बच्चे मिलियंस नहीं बना सकते। मिलियंस बनाने के लिए यू गॉट टू बी ग्राउंड मेंटालिटी, आपके पास एक बिग हार्ट होना चाहिए, सो यू गोना डू इट। ठीक है, सो जो पुरानी चीजें अभी भी किसी ने होल्ड की हुई हैं, अगर हम सेटिस्फाई नहीं है, लेट्स से हम VR से सेटिस्फाई नहीं है, लिया हुआ है, ब्रेक इवन पे आता है, सेल इट, बाय बाय टाटा, कुछ थोड़ा सा रख लें। ये ना हो गया VRA 30x मार्जिन रिग्रेट हो, 25-30% रख लें, 30% रख लें, बाकी कोई 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट साथ स्वैप कर लें उसको। सिंपल यार, कोई इतना मेरे साथ भी हुआ है, 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मैंने लिए हुए हैं, अच्छी अमाउंट के लिए हुए हैं, लेकिन वो मर गए हैं। मुझे पता था कि वो रिस्की है। ठीक है, मैं उनके बारे में वरीड नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है वो मर गया है, वो ऑलरेडी 5x 6x नीचे चला गया। मैंने वो इन्वेस्टमेंट उठाई उस दिन, और मैंने एक प्रोजेक्ट में डाला हुआ था ऑलमोस्ट 10,000, वो 2,000 रह गया। अब मुझे उसमें जान नहीं लग रही, शायद वो मूव हो जाए। मैंने उसको 70% सेल किया, और कुछ पैसे मैंने डाल दिए अपनी मर्जी से लेनिक्स में, उसके आधे पैसे मैंने मंडी में डाल दिए। मेरी गुल्ला की हुई, लेनिक्स भी पंप हो रहा है, मंडी भी पंप हो रहा है।
समटाइम गुड लैक हो जाती है, समटाइम ऐसा होता है आप किसी को बेच के अगले में डाल देते हो, अगला भी डंप हो जाता है। तो इट इज क्रिप्टो, यू गोटा हैव बिग हार्ट, पेशेंस, मरीज नहीं होना, ठीक है, सब्र चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बाकी पोर्टफोलियो सबके ठीक है, उनको रिव्यू करें, जिन चीज़ों पे आप सेटिस्फाई नहीं हैं उनको थोड़ा थोड़ा कम करके कोई नई चीज़ें ऐड कर लें, और अपना टारगेट जो है, अपना जो गोल है पोर्टफोलियो के हवाले से, जो आपने टारगेट बनाए हुए हैं उसको कम ना करना। जब आप अपना, अगर पोर्टफोलियो का टारगेट 10x है ना, अगर आप कहेंगे ना कि मेरा यार पोर्टफोलियो 3x भी हो जाए तो इट्स इनफ, दैट मीन्स कि आप रॉन्ग ट्रैक पे चल पड़े। तो जब आप 10x के पोर्टफोलियो का टारगेट 3x रखेंगे, फिर आपकी स्ट्रेटजी 3x वाली होगी, आप मार्केट से वेरी अर्ली एग्जिट कर देंगे और फिर आप टॉप पे जाके बाइंग कर लेंगे। याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो टारगेट है, जिस किसी का टारगेट 20x है उसको 22x कर लें। अगर आप 20x वाले टारगेट वाले लोग ये सोचना शुरू हो जाएंगे ना, मार्केट सेंटिमेंट्स अभी जो हैं वो कोई बड़े हाई फाई नहीं है, साइडवेज है, बोरिंग है, कोई नेगेटिविटी है, उधर एक आई मीन बिग न्यूज एक्सपेक्टेड है, शायद वो वॉर की सिचुएशन बनी है, रशिया पूरी नेटो फोर्सेस एक साइड पे हैं, रशिया एक साइड पे है, चाइना उधर हो गया, ताइवान की अपनी सिचुएशन बनी है, नॉर्थ कोरिया की अपनी सिचुएशन है। अगर उधर कोई एक आई मीन अल्लाह ना करे ऐसा एक बड़ी वॉर हो जाती है तो दुनिया की हर मार्केट ड्रॉप हो जाएगी। वो तो एक ऐसी चीज हो जाएगी ना जिसको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों ने अपना टारगेट जो है ना, डोंट चेंज योर टारगेट। टारगेट चेंज करेंगे तो आप मार्केट से टू अर्ली एग्जिट कर देंगे, जो आई मीन एक बहुत खतरनाक चीज होगी आप लोगों के लिए, बिकॉज आगे ये अपॉर्चुनिटी दोबारा फिर वो 2027-28 में जाके मिलेगी। यार पेपर 2 का मैंने चार्ट एक पोस्ट किया है, ट्विटर पे जाके देख लो, ठीक है। पहला टारगेट तो है जहां मैंने एक वो फ्लैग सा पुश लगाया हुआ है येलो कलर का, वहां तक तो इसको जाना चाहिए, ठीक है। अगर उस फ्लैग तक पेपर 2 पहुंचता है तो आई थिंक वहां पे जाके 5-6-7x बन जाता है, और ये करेगा, मेरा ख्याल है कि ये करेगा। मीन कोइन लेफ्ट राइट से वॉल्यूम पता नहीं कहां से आ रहा है। लास्ट टाइम पेपर 2 ने अपने बॉटम से, ओ माय गॉड, मुझे तो अब कैलकुलेट भी करना नहीं आ रहा कि बॉटम से कितनी इसने ली थी अपना, 4, 6, 8, 10, अच्छा 2 से ये 28 पे गया, 14x किया था पेपर 2 ने, 14-15x लास्ट टाइम। और वो मूव इसने की थी February 1, तकरीबन February 1 से लेकर February 25 दिनों में मूव की थी। पेपर 2 ने तकरीबन 25x किया था। अच्छा यार, ये आंसुओं वाले हंसने वाले बाद में भेज देना, हम नॉट पेइंग अटेंशन, ठीक है। 25 दिन मूव हुआ था, उस दिन मैं आपसे ये कह रहा था। अब मैं समझता हूं कि पेपर 2 की वो जो 25 दिन वाली मूव थी ना, वो शुरू हुई है 20 मई को, क्योंकि 20 मई को इसने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया 1 डे में। तो अगर हम इसका सेलिंग टारगेट जो है ना आप रखो ना कि मैंने इसको 20 जून 25 जून इन दिनों में सेल करना है, आई थिंक तब तक पेपर 2 हमें एक अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। हाँ, दूसरी चीज, मेरे बहुत सारे दोस्त जो है ना उन लॉन्ग शॉर्ट को प्ले करते हैं, ओके दैट्स फाइन, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। पेपर 2 में लेट्स से कि आपके पास 5000 है, लिक्विड नहीं होने देनी ट्रेड, 4000 की स्पॉट में ट्रेड ले लें, $4000 की, $1000 से उसको आप फ्यूचर में या मार्जिन में 3 to 4x लॉन्ग कर लें, ठीक है। लॉन्ग का लिक्विड नहीं होने देना। इन केस मार्केट में कोई शार्प क्रैश आता है और कोई ना आपकी लॉन्ग को लिक्विड कर भी जाती है, यू स्टिल हैव इनफ होल्डिंग इन योर स्पॉट। अगर वो 4000 का जो एक साइड पे आपने लिया हुआ है, आई मीन 5000 था टोटल, 1000 की आपने लॉन्ग की है, 4000 का आपने स्पॉट में ले लिया, अगर वो स्पॉट का 3x भी कर गया तो आपने स्टिल 12000 प्रॉफिट बना लिया। फ्यूचर में अगर आप 1000 लूज भी कर जाते हैं, इट्स ओके, फाइट करने नहीं जाना। लेकिन वो आपको पता है कि आप किस लेवल की ट्रेड को हैंडल कर सकते हैं। 3x करेंगे तो ऑब्वियसली यहां से अभी प्राइस 6.5 में है, 3x करेंगे तो उसका लिक्विडेशन बनेगी आई बिलीव के 0.0
3 पे तकरीबन या 4 पे जाके, ठीक है। तो इसको आप इससे स्टार्ट कर लें, लेट्स सी क्या होता है। जब ये एग्जिट कर रहे होंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि चलो यार आगे ये 2 कोइन है उनको ले लें। तो बाकी पोर्टफोलियो को साइड पे रखना है, ठीक है। जो भी है पोर्टफोलियो आपका, एक आपने ट्रेड ऐसी बनानी है जिसको आपने पूरी एंड 6-7 महीने तक फ्लिप करते रहना है विदाउट एनी फियर, कोई फियर नहीं, कोई डर नहीं। एक ट्रेड में 1000 डाला है, 3000 निकला है, ठीक है, वो 3 का 3 अगली में डाल देना। वो 3 का 9 हो गया या 6 हो गया, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई फियर नहीं है, वो 9000 उठाना है, उससे अगली ट्रेड में डाल देना एक में। 9000 का 18 हो गया या 27 हो गया, विदाउट एनी फियर, कोई स्ट्रेस नहीं लेनी। हाँ, 9000 का अगर आपका 27 हो गया, कोई 3-4 हज़ार निकालने हैं, साइड पे कर लें, बाकी सारे के सारे एक में ही डाल दें। सोच समझ के डालेंगे, हम भी इतने बेवकूफ नहीं है किसी ऐसे में डाल दें चलती मार्केट में जो बिल्कुल ही मर जाए, ऐसा नहीं करेंगे। सो आप भी ऐसा नहीं करोगे। सो आई थिंक एक ट्रेड आपके पास ऐसी होनी चाहिए, बाकी पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट जो है वो चलती रहेगी। और दोबारा फिर कह दूं, कोई बंदा अपना जो है ना पोर्टफोलियो का टारगेट चेंज ना करना, ठीक है। ओंडो फ्लाइंग, ओंडो 140 पे चला गया, 2 बिलियन मार्केट कैप भी हो गया, ये भी ध्यान में रखना। और फ्लाइंग फ्लाइंग पे चक्कर में टॉप बाय भी ना कर लेना। हाँ जी रॉकी साहब, ठीक है जी। जाहिद भाई बताएं। जी नदीम भाई सही कह रहे हैं। ओंडो ओंडो को देख के दिल तो करता है बाय करने को, मगर ये भी देखें कि 2 बिलियन मार्केट कैप हो गया इसका। ना भाई ना, अगर अब किसी ने लेना है तो वेरी वेरी रिस्की। यार लेट द मार्केट गो रीच टू द टॉप। इनको मैं ऐसी शॉर्ट्स करवाऊंगा कि इनकी ये सारे पागल हो जाएंगे, ठीक है। अभी इनको ये नहीं पता, ऐसी शॉर्ट्स होनी है, ऐसी शॉर्ट्स आप ट्रेड्स आपको मिलनी है कि आपको समझ नहीं आनी पैसे आ कहां से रहे। लेट्स डू द लॉन्ग फर्स्ट ट्रेंड के साथ हम इसको चलते हैं। जब डाउन ट्रेंड आएगा फिर उसकी स्ट्रेटजी अपनी ही होगी, ठीक है। कर दो भाजी, हम वेटिंग बीटीसी अपडेट। बीटीसी इज गोइंग टू $90,000, दैट्स द ओनली वन अपडेट। आई डोंट मेजर $2-3,000 $1,000 वर्थ मूव, आई डोंट। नोट कोइन का मुझे नहीं पता, बस यारा बस। XRP फैट टर्टल, जब भी XRP आपको डॉलर पे नजर आए पैसे लेके भाग जो, कुछ और ले लो जाके, वरना यू गोना बी स्टक विद XRP। आपका पेट भी मोटा हो जाना XRP के साथ साथ। आपकी जो वेस्ट है ना, जिन लोगों ने XRP रखा हुआ है, वो बेचारे जिसकी वेस्ट थी ना, मेरे जैसे किसी बंदे की 28 जब XRP लिया था तो वेस्ट भी 34 हो गई, XRP नहीं लिया। या ग्रे हेयर हो जाएंगे। हाँ यार ये जो फेवरेट कॉइन पूछ रहे हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप में आ जाए ना, तो वहां पर लिस्ट पूरी लगी हुई है। टेलीग्राम ग्रुप में आप जाया करें ना, व्हाट्स योर फेवरेट वहां पे कॉइन पूरी लिस्ट लगी हुई है फेवरेट की। उमैर शफी, उमैर भाई XRP का तो वही हाल हो गया है, अब्बा ले और पोता बेचे। वो पोता भी कुछ नहीं बनना, नुकसान जी बेचेगा। अब्बे ने लिया होना डॉलर का पोता, के यार ये डॉलर का ग्रैंडपा ने लिया था तो अब 25 सेंट पे ना, ग्रैंडपा पागल था, वो बेच के पोता खा पी जाएगा। वो फिर गलाट वो बेच के पैपे में डाल देता है टू में। मैं आपको बताऊं अभी आमिर, ये एक वाइल्ड किस्म की मैं बात करने लगा हूँ। XRP से इस टाइम पेपर 2 अच्छा है, कसम से। मैं कहता हूँ नदीम भाई सारे अच्छे कॉइनों से मीम कोइन अच्छे हैं। वो एक बंदा कह रहा व्हाट अबाउट टर्बो, व्हाट यू मीन व्हाट अबाउट टर्बो। टर्बो मैंने मार्च के महीने में ट्रेड कराया था, पब्लिक को 3x किया था, तो अभी तो 20x ऊपर जा चुका है यार। अभी तो खुदा का खौफ करो, धरो उससे थोड़ा सा। या आई एम सेइंग दैट। और यार पेपे 2 जो, आई थिंक पेपे 2 कार्डानो से बेटर है, मैटी से बेटर है, XRP से, यार इन सारे फैट टोटल से बेटर है पेपे 2। नहीं आर्बिट्रम करेगा, आर्बिट्रम अभी मार्केट सर। हाँ इन सारे ये जो फैट टोटल्स है ना, इनसे स्विफ्ट कॉइन बेटर है। और यार मर गया अर्थ कॉइन, वन अर्थ, मुझे इसका क्या करना है आपने, आई डोंट नो। मैंने खूब बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी, इट्स कीप गोइंग डाउन इन वाटर। इन सब से जैस्मिन बेस्ट है नदीम भाई जी, इन सब से तो जैस्मिन बेस्ट है, जैस्मिन ही रुक रही। हाँ जैस्मिन रुक रहा, जैस्मिन नहीं रुक रहा, बिल्कुल बिल्कुल बता तो रहा नदीम भाई ने, किसी दोस्त ने डाले हुए थे पैसे, बड़े बना लिए उसने। शेख साहब मेरे मुंह से निकला है कि जैस्मिन नहीं रुक रही। हाँ जी बिल्कुल। बात करो।
सही है, सच ही निकलता है मुंह से यार हाँ जी भाई साहब। शेख साहब। जी जी। आरबी ट्रम 10x, मुझे आप बताओ आरबी ट्रम जो है उसको 10x करने के लिए आपको $30 बिलियन चाहिए। इफ यू थिंक आरबी ट्रम जो है उसका पूरा इकोसिस्टम 30 बिलियन का बिजनेस कर सकता है तो 10x कर सकता है। आई मीन मैं समझता हूँ कि इसको करना चाहिए, 30 बिलियन 25 बिलियन का मार्केट कैप करना चाहिए, लेकिन कंपटीशन डे बाई डे बढ़ता ही चला जा रहा है। somebody said just miss is easy 10x, बिल्कुल सही, चुप के रखो। आई मीन ध्यान से 2 बिलियन मार्केट कैप तक पहुंच गया होगा जज्मी ऑलमोस्ट इस टाइम पे। हाय, यार शोर किसका आ रहा है? मियाँ साहब आपका शोर पता नहीं क्यों आता। मियाँ साहब आप ना इस तरह करें, या तो फोन को पानी में, गर्म पानी में डुबोएं, उसको डुबकियां लगाएं 3। नदीम भाई बाहर डेक पे बैठा हूँ तो इधर वो साथ वो चल रहा है, एसी का फैन चल रहा अच्छा, मैं क्या शायद मैं क्या यहाँ वो लगाइए कान वाली, तो उसको थोड़ी सी गर्म हवा दे। है। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾ, मेरा दिल है जो कुछ है क्रिप्टो ਦੇ ਖਰਚਾ। और तो मेरे भी यार बैक्स के बारे में बात कर चुके हैं ये खुद नहीं, पता नहीं क्या कह रहा है उस्मान। बाद आ जाओ उस्मान, तेरी साउथ कोरिया में गेम पढ़ने वाली, नॉर्थ कोरिया में निकल के फटाफट ना पाकिस्तान भाग जाओ, नहीं तो इधर अमेरिका आ जा तो को यार हमने रखा हुआ है, स्टिल आई एम स्टिल होल्डिंग्स तो को मैं, आई मीन उसका एक बैग जो छोटा सा रखा हुआ है वो रखा हुआ है। आई हैव अ बिग टोको बैग। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। शेख साहब ने काफी सारा लेके रखा हुआ है। वेयर शुड आई बुक माई प्रॉफिट इन XRP? या अगर डॉलर पे चला जाए पैसे लेके, जब XRP डॉलर पे चला जाए ना मेरा भाई, क्लोजर आपने वो लेना है जिसके आगे वो मोटा सा धागा होता है, आई मीन नाला टाइप की चीज, बेल्ट टाइप की चीज। जब XRP डॉलर पे चला जाए उसको बेच के अपना नाला टाइट करके भाग नहीं मेरा बेटा सॉरी यार, माइंड नहीं करना पता नहीं बंदा मुझसे बड़ा ही ना हो एज में यार, जो XRP जो है ना, ऐसे नदीम भाई हमने तो लास्ट बुल रन में भी XRP डॉलर समथिंग में भेज दिया था, राइट? $50 कहाँ भेजा था हमने? ये मतलब आई थिंक $2 पे गया था ना ये, $2 के करीब करीब हमने, $2 से नीचे भेजा था, हाँ हमने $1 के ऊपर भेजा था मैंने। हाँ वही हम निकल गए थे। हमने ये लोग कह रहे थे $5 पे जा रहा है, $10 पे जा रहा है, कई लोग मैं कहा $300 पे लेके जा रहे थे इसको, $300 पे। मैं कहा ले जाओ सारे ले जाओ। कहते थे अमेरिका की ये करेंसी बन जाएगा XRP। जी ये पागल है गवर्नमेंट वाले ना। मियां साहब ये सारे लड़के मेरे घर पे बैठे हुए थे, वेट कोइन ना उस दिन 27 सेंट पे ट्रेड हो रहा था। जाहिद शेख साहब, मैंने इनको दिखाई थी, मैंने वेट कोइन को 27 सेंट पे बेचा था। अच्छा लास्ट बुल मार्केट में जबरदस्त। 27 सेंट पे, और वो उस बुल मार्केट में वेट कोइन का टॉप था, और उस वक्त लोग मुझे कहते थे कि वेट इज गोइंग टू $1। मैं कहता था यार जाने दो, 002 से कहाँ उठा है, 27 सेंट पे चला गया है। डोज कोइन लोग कहते थे ये $5 पे जा रहा है, $1 पे जा रहा है, $3 पे जा रहा है, 70 सेंट पे था। मैं लाइव बैठा हुआ था, मैंने कहा ये इसका टॉप होगा, बेच देना। और लोग उस टाइम लेके उस दिन लोगों ने फिर भी खरीदा था कहने के बावजूद। यार ये ना क्रिप्टो फ्यूचर 007 के फेक ग्रुप्स जो है ना, मुझे 2 फॉलोवर आ चुके हैं, तो ये प्लीज सब लोग ध्यान से, अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है तो देख बहुत से लें। आते हैं, मुझे भी बड़े बड़े मियाँ सब आ गए हैं, बहुत ज्यादा आ मैं गए वही हैं। कह रहा हूँ ना कि ये अभी राइट नाउ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कोई साहब इधर ही बैठ के लगे हुए हैं। जेरा जो भी है ना, सब आपके फॉलोवर तो बढ़ रहे हैं ना। दुनिया की जितनी भी सबसे बड़ी गाली है ना, उस बंदे अभी का अनफॉलो कर जाएंगे है मियाँ जी। जी जितनी भी दुनिया की सबसे बड़ी और भाई, गंदी ना गाली है ना, करो। वो उसके लिए वो है हमारी तरफ से। बस कहना नहीं, मैंने बस इतना मतलब समझ जाए पाता हूँ उस बंदे के हाँ लिए। नहीं तो समझ आवे दी ने। MNW मेरे पास जितना भी है मैंने चुप करके रखा हुआ है, and I'm not gonna talk about, I'm not worried about it, ठीक है। MNW का बैग रखा हुआ है, जब भी सप्लाई चेन का नैरेटिव बिल्ट होगा, सप्लाई चेन के नैरेटिव में पैसे आएंगे, जब भी सप्लाई चेन के नैरेटिव की बातें होंगी, MNW सबसे ज्यादा मूव करेगा। नदीम भाई की ट्विटर आईडी है Nadeem6321
विद नो डैश डॉट डॉलर साइन, कुछ भी नहीं था। पापा सबसे मम्मा अम्मी। सबसे इजी वे होता है फाइंड करने का। आप देखें ना, नदीम भाई के इस वक्त जो फॉलोअर है 1,32,000 है। अगर कोई न्यू आईडी आता है तो उसके मैक्सिमम जो है 2-4 हज़ार फॉलोअर होंगे, इसलिए वहां से आप जो है ना अवॉइड ही करें उसे। हाँ, टिकटॉक से 3 मैसेजेस इंपॉर्टेंट। कोई भी आपको मेरे नाम से रीच करता है उसको ब्लॉक कर दे, मैं नहीं। तो यार मैं तो हार्डली, आप जो लोग मुझे बेचारे ये मेरे दोस्त मैसेज करते हैं उनके मैसेज का जवाब बड़ी मुश्किल देता हूँ, मैं आपको जाके मैसेज कैसे करूंगा, मैंने ये तो दसो। हाँ जी, कभी असं कभी समझ मेरे सकते हैं। नहीं भाई, कभी नहीं कभी भाई, कभी कभी हम समझ रहे होंगे, पर आप फेक लोगों को मैसेज कर रहे हैं, मैं मैसेज नहीं दो दिन कर मैं 2 दिन से अभी पकड़ का मैसेज ना पढ़ूं, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह ये मुझे कह रहा होता है अक्का जी खैर है ये मैसेज 2 दिन कभी कभी निकल जाते हैं। यार। तो मैं तो किसी मैं को मैसेज कैसे करूंगा, ये मुझे बताओ। मैंने इसीलिए कहा ना कि असं समझ सकते हैं। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो लोग यहाँ पे हैं और कोई भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, बस गपशप सुन के चले जाते हैं। आई मीन इफ यू थिंक यू आर अ चैंपियन, यू आर नॉट। या तो फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, अगर आप फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो वेरी गुड। उसके बाद अगर आप चाहते हैं ना कि प्रॉपर आप स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करो, जो लोग मुझे पूछ रहे होते हैं जी टीपी बताएं, एसएल बताएं, एंट्री बताएं, एग्जिट बताएं, क्रिप्टो फ्यूचर 007 वीआईपी उसको ज्वाइन कर लें। ये 3 मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा मैसेज एक और दोबारा फिर रिपीट कर दूं, जो आपके पोर्टफोलियो का आपका टारगेट है उसको 2x और ऊपर कर दें। 2x नीचे नहीं करना, ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो जो क्रेजी मूव है वो आई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब 5वां मैसेज एक और है आज की लाइव का, जो लुबिल बात, एक स्ट्रेटजी आपको बताई है, कोई एक ट्रेड आप स्टार्ट कर दें जिसका आपके पोर्टफोलियो के साथ ताल्लुक नहीं होगा, उसको आपने फ्लिप करते चले जाना है अगले 6 से 8 महीने तक। उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपे 2 से। दैट्स इट, आई एम डन फॉर टुडे। बाकी फिर वही लोग जो 15-20 हज़ार 50 हज़ार 30 हज़ार का पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रही, ठीक है, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर आप पब्लिक में हैं वेरी गुड, लेकिन पब्लिक ग्रुप में सारी चीजें हम नहीं बता सकते या नहीं किसी तरीके से अपडेट हो रही होती, वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। ऐसे वेरी सिंपल सिंपल चीजें, इनको सिंपल रखें, स्ट्रेटजी सिंपल रखें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो लोग कंफ्यूज होंगे वही पटरी से उतर जाते हैं। दैट्स इट। आई एम स्टक इन डेंट 2 सिंस लॉन्ग बॉट इन जनवरी। कोई बात नहीं, डेंट मैंने अभी और खरीदा है इस प्राइस पे, बिलीव मी, मैं यहां पे डेंट को लॉन्ग करना चाहता हूं। अगर मेरे पास यहाँ पे 10,000 होगा ना, तो मैं 8,000 रुपए का डेंट स्पॉट में ले लूंगा, 2,000 रुपए का मैं जाके 3x लॉन्ग भी करूंगा। मैं यहाँ पे डेंट को लॉन्ग करना चाहता हूँ, जाके उसका चार्ट तो देखो। डॉज के ऊपर नजर रखें, एक और हिंट दे देता हूँ, डॉज के ऊपर नजर रखें। मीन कॉइन छोटे मोटे लेफ्ट राइट मम्मा पापा वाले सारे पंप हो रहे हैं, ठीक है। पेपे भी पंप हो गया, पेपे ने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। बहुत सारे मीन कॉइन्स ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। मीन कॉइन्स की बात हो रही थी यार, ये है एक अहम टॉपिक था, मैंने अपने मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। ये देखें, देखते हैं मार्केट मेकर्स क्या करते हैं। लेट्स सी कि मेरा क्या ओपिनियन है यहाँ पे। मेरा जो ओपिनियन है डॉज को इनके हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, बस 1 सेकंड मुझे दे दें। आई थिंक आई एम ऑलरेडी रेडी, मैं इसमें रेडी हूँ, मुझे कोई नहीं है इसमें ना। डॉज को इनका बताता हूँ, एक चार्ट शेयर करने लगा हूँ यार। जस्मिन बहुत पंप हो गया हुआ है, बस को ध्यान से उसमें पता क्या, इस टाइम पे जस्मिन कोइन में से हल्का हल्का प्रॉफिट लेते चले जाएं। अब इन कहीं टॉप बाय ना कर लेना, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, ठीक है। उसकी बस पैनासोनिक के साथ पार्टनरशिप है, सोनी के साथ है, मतलब वन ऑफ देम उसकी पार्टनरशिप है। एक पार्टनरशिप इस तरह की एक और हो जाएगी, कितने पैसे आ जाएंगे, ऑलरेडी 2 बिलियन पे चला गया, ठीक है। सो देखें, उसमें से प्रॉफिट लें। और इस लेवल पे आपको वो प्रोजेक्ट चाहिए जिनके मार्केट कैप 50 मिलियन 25 मिलियन 10 मिलियन मार्केट कैप हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स। एनालॉज को होल्ड कर लें, बंदे बने रहो एनालॉज वाले, भी ना सेल करना। एनालॉज यहां से कुछ भी कर सकता है, कहीं भी पागल हो सकता है। डॉज की हिंट देने लगा हूं, ये सुन लें जरा, देख लें पहले। डॉज कॉइन की मैं बात करने लगा था आप लोगों से ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं लंबे चौड़े इंडिकेटर जो है ना वो यूज नहीं करता।
50 डे मूविंग एवरेज ये है, डॉज ने क्रॉस की, दैट वाज इन अक्टूबर 2023। उसके बाद डॉज ने ये पूरी एक रैली की, वो जा रहा है, ओके, ये डॉज की बात हो रही है। फिर गिरा, 50 डे से नीचे गिर गया, 50 डे से नीचे यहां पे उसने कंसोलिडेशन की यहां पर आके डॉज ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। यहां पे नजर आ रहा है ना सबको, यस या नो कर दें, सिर्फ डॉज की बात कर रहा हूं मैं। हर बंदे का अपना अपना चार्ट करने का ना एक अपना ही तरीका होता है। अब फिर इसने 50 डे ब्रेक की डॉज ने फरवरी के सेकंड वीक में, ओके। उसके बाद देखिए डॉज ने 50 डे ब्रेक करके ना यहां थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया था और एक लंबी चौड़ी उसने रैली ली। आई मीन 8 सेंट से डॉज जो है 22 सेंट पे गया था। वो ठीक है कि इसको 8 सेंट से 22 सेंट पे जाने के लिए इसकी कुछ न्यूज आई थी, इनकी फरारी के साथ पार्टनरशिप हो गई और इलान ने और टेस्ला ने कहा जी हम डॉज ले रहे हैं या लेंगे। 4 टेस्ला ऐसी कोई बातें हुई, यहाँ पे आकर इसने एक तगड़ा मूव किया, काफी बिलियंस ऑफ डॉलर का इसमें बिजनेस आया। उसके बाद डॉज यहाँ पे 2 डबल टॉप किया, 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, 200 डे को ब्रेक नहीं किया, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे पिछली दफा था। अब यहां पे गौर से देख लें, 50 डे को ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेशन हुई, 50 डे दोबारा उसने रिक्लेम किया और लंबी रैली की, ठीक है। ये रैली यहां तक आई, आई मीन 24 सेंट तक ऑलमोस्ट। उसके बाद 50 डे ब्रेक हुई, ये कंसोलिडेशन किया डॉज ने। अब 50 डे को उसने रिक्लेम कर लिया दोबारा, ओके। मेरा ख्याल है कि अब डॉज अपनी एक, क्योंकि डॉज जो है ना इसको अच्छा खासा मार्केट कैप चाहिए होता है, अच्छा तगड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है एक मूव करने के लिए। सो आई थिंक डॉज यहां पे रेडी है, किसी भी टाइम डॉज एक मूव शुरू करेगा। जो मेरा मानना यह है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना 30 सेंट तक डॉज यहां से मूव कर सकता है, ठीक है। अब मैं इसको मूव नहीं करवाऊंगा, इसको मार्केट ने मूव करवाना है। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं जो चार्ट मुझे बता रहा है, दैट्स इट। आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल्स। जितनी दफा भी इसने 50 डे मूविंग एवरेज को पिछले 2 दफा रिक्लेम किया है, एक अच्छा मूव किया है, ठीक है। अब आई थिंक यहां से 50 डे मूविंग एवरेज को उसने रिक्लेम कर लिया है, रीटेस्ट भी कर लिया। आई थिंक यहां से डॉज एक स्लोली रैली करेगा जून के महीने में और अराउंड 30, हो सकता है 32 पे भी चला जाए। दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट द डॉज, ठीक है। ये ट्रेड है बड़ी उन लोगों के लिए जो बड़े कूल माइंडेड हैं और बड़े पेशेंस वाले जो लोग हैं, ये उनके लिए ट्रेड है, सिक्योर भी है, आई मीन मरेगा नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डॉज अगर यहां से 16 से 32 सेंट पे जाता है ना तो 100% की मूव करेगा, ठीक है। लेकिन डीसी डॉज चेन अगर ये 100% मूव करता है तो वो 3 to 400% मूव होगा, ओके। मैं यहां पे हो सकता है डॉज को 3x लॉन्ग कर लूं या 5x लॉन्ग कर लूं, इट्स ऑल डिपेंड कि मैं क्या करता हूं। स्पॉट में मैं डीसी को ज्यादा जाके बाय कर लूंगा। अगर डॉज 100% की मूव करेगा, डीसी जो है वो 3 to 400% की मूव करेगा, ठीक है। ये भी आपको एक हिंट दे दिया। सलाम उस्ताद जी, एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। आई एम गुड, परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब, आई एम फाइन, अल्लाह का बड़ा शुक्र। सो ये एक ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर की है। आई मीन मुझे लग रहा है कि डॉज यहां से एक तगड़ी मूव कर सकता है। दूसरा मैंने पेपे 2 का एक चार्ट पोस्ट किया है। एक और, आई मीन इट्स नॉट अ फंडामेंटल जो मैं कहने जा रहा हूं, टेक्निकल डॉज का मैंने आपको बता दिया है, फंडामेंटल बात करने नहीं जा रहा, मार्केट सेंटीमेंट्स की बात करने जा रहे हैं। ये सेंटीमेंट्स में आ जाता है। पेपे पंप हो गया, ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गया। फ्लोकी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गया। बहुत सारे पापा मामा के डैडी के कोइन जो है ना वो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गए हैं। आई मीन मीम कोइन की बात कर रहे हैं। पीछे कौन है? डॉज पीछे रह गया, शिप पीछे रह गया, दोनों पीछे रह गए, ठीक है। शिप का मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है, मैंने उसको इतना, मैं उसको फॉलो नहीं करता इतना ज्यादा। जाहिद भाई को ये बात बुरी लगी, ठीक है।
अब ये सारे कॉइन जिनके पीछे को बड़े लोग नहीं है वो अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गए हैं, ठीक है। अब सम पॉइंट डॉज ने जो है मार्केट सेंटीमेंट जो है ना अपनी तरफ रखने के लिए, पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रखने के लिए डॉज के हवाले से, इन चीज़ों को पॉजिटिव रखने के लिए डॉज की टीम, डॉज का के बैकर्स जो हैं वो इसको यहाँ से मूव करवाएंगे आई बिलीव। तो अगर डॉज 16 से 30-32 सेंट पे जाता है, आई बिलीव कि डीसी जो है वो 200 से 300% की मूव करेगा, 300% की मूव करेगा। सो मैं डीसी को क्यूमुलेट कर रहा हूँ स्लोली एक साइड पे स्पॉट में, और डॉज की मैंने एक लॉन्ग की हुई है, लेकिन मेरी जो लॉन्ग है मुझे उसकी परवाह नहीं है क्योंकि मेरा वो सिर्फ 5x है और मेरी उसकी जो लिक्विडेशन है वो 5 सेंट पे है। तो आई डोंट थिंक सो कि डॉज जो है बुल मार्केट में 200 डे ब्रेक करेगा, इवन 300 डे ब्रेक करेगा, सारी मूविंग एवरेजेस ब्रेक करेगा तो फिर 5 सेंट पे आएगा, ठीक है। सो डॉज मैंने लॉन्ग किया हुआ, ये जब इसने 50 डे को रीटेस्ट किया ना 2 दिन पहले ही मैंने लॉन्ग किया इसको, और मैं इसको तसल्ली से होल्ड करके बैठा हूं। इन 2 ट्रेड्स को ना, डॉज डीसी वाली और पेपे 2 वाली, ये 3 ट्रेड्स को आपने 15-20 दिन अपने साथ रखना है, यू गोना सी द रिजल्ट, ठीक है। सही है, बस ये 2-3 चीजें मैंने शेयर करनी थी। अच्छा जी, समवन सेइंग जी अब्बास कह रहे हैं नदीम भाई यू आर इग्नोरिंग माय कमेंट इवन इट वाज ऑथेंटिकेट्स मीन यू डोंट हैव आंसर सो रॉन्ग नंबर। लो जी, बात अब ये है जी भाई, मेरे पास कोई 4 आंखें तो है नहीं, या मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं, यहाँ पे मैंने कोई एआई का कंप्यूटर नहीं बैठाया हुआ, कोई एआई का बंदा नहीं बैठाया हुआ जो आपके कमेंट पढ़ के मुझे बताएगा कि यू आर कमेंटिंग एंड सेइंग समथिंग, ठीक है। नंबर 2, रॉन्ग नंबर है तो रॉन्ग नंबर है भाई, आप ब्लॉक करें उसको, मेरी ये लाइव को छोड़ें और चले जाएं, इट्स ओके, आई एम सॉरी, आई एम नॉट ओवर स्मार्ट, कोई भी बंदा माइंड ना करे। और भाई मैं एक टॉपिक पे बात कर रहा हूं, मेरा फोकस चार्ट्स पे है, ठीक है। मैं उसकी टेक्निकल चीज एक शेयर कर रहा हूं, हाउ कैन आई रीड योर कमेंट्स टू डूइंग ऑल दैट बिटवीन दैट टाइम। अगर कोई चीज निकल गया तो इट्स ओके, यू कैन बी, यू डोंट हैव टू बी ओवर स्मार्ट, यू डोंट हैव टू बी मैड विद मी, ये आई मीन आई कैन टेक दैट, सॉरी। दोबारा क्या आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नदीम भाई प्लीज कैन यू रीड माय कमेंट, हो सकता है अगर आप मुझे रॉन्ग नंबर कहने आ जाएंगे तो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इन माय हियर टू। बाय, जय शाबाश, आप मौजें करें यार, चीज गुजर जाती है, हम लोग पता नहीं लोग आ जाते हैं कि जैसे हमने उनकी कोई ट्रेड में ऐसा प्रॉफिट नहीं है यार, मैं हमारे लिए सड़ा लाओ है। टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, एक ट्रेड के ऊपर बात हो रही है यार, पब्लिक के फायदे के लिए बात हो रही है, एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि यार डॉज को मैंने 5x कर किया हुआ या 3x किया हुआ है, इसको मैं पूरे जून के महीने में मेरा प्लान है, इसको होल्ड करूंगा, और मैं स्पॉट में डीसी ले रहा हूँ, डॉज चेन आपको KuCoin में मिलेगा। तो और मैं ये भी कह रहा हूँ कि यार ये आपने जून के महीने में इस ट्रेड के साथ खेलना है, इट विल गिव यू इनफ रीजनेबल प्रॉफिट। पेपे 2 की बात हो रही है और वो बंदा आगे अपनी बातें किए जा रहा है, आई मीन कम ऑन यार, स्टॉप दैट। पेपे 2 का भी चार्ट मैं दिखा दूं एक आप लोगों को कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी इसको पोस्ट कर दिया उसके ऊपर ट्विटर पे, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है लास्ट टाइम मैंने बात की थी पेपे 2 के चार्ट पे ना, ले फिर एक बार उसको फिर एक बार अपडेट कर लेते हैं। खैर, आईसीबी के थॉट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आईसीबी स्टिल मूव विद द मार्केट वेरी वेल, लेकिन उसके थोड़ा जैसे ही बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, आई बिलीव आईसीबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वीलो भी अच्छा करेगा, आईएसपी भी अच्छा करेगा, ये दोनों की बहुत हाइप लोगों ने बनाई है, कुछ अकाउंट्स हैं ट्विटर पे इनको पोस्ट किए जा रहे हैं, एंड चलेंगे ये लोग, ठीक है। और अभी किसी ने पोस्ट किया है, अब मैं लाइव बंद करूंगा क्योंकि बहुत लंबी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ पेपे 2 का चार्ट देख लें, डीसी विल डीसी 10 डीसी 10x कर सकता है, इट डिपेंड ऑन डॉज, अगर डॉज 3-4x करेगा डीसी 10 का 20x कर सकता है, इट डिपेंड ऑन डॉज। यार ये पेपे 2 का मैंने आपको चार्ट ये शेयर किया था, इट्स नॉट मी सेइंग, ठीक है। अगर मेरा ये चार्ट दिखाने के दौरान कोई बंदा कमेंट कर रहा होगा तो आई एम नॉट गोना बी एबल टू रीड दैट, आई एम नॉट गोना बी एबल टू रिप्लाई दैट, मैं बात इस पे कर रहा हूं, अंडरस्टैंड करें इस चीज को। पेपे 2 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था ना, यहां से इसकी मतलब टॉप हुआ, उसके बाद ये गिरता गिराता
रोता रोता 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे इसने लंबा ये 1 डे का चार्ट है, अच्छा ये भी याद रखना, लंबा चौड़ा कंसोलिडेट किया। जो लोग खिलाड़ी हैं वो अपने चार्ट खोल लें, 50 डे मूविंग एवरेज खोल लें बस। इसने जब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अच्छा खासा एक कंसोलिडेट किया, 50 डे को जैसे ही रिक्लेम किया, क्रॉस किया 50 डे मूविंग एवरेज को, अच्छा खासा एक मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इसकी 12x मूव किया था। इस मूव के बाद ये पेपे 2 है, उसने यहां से गिरता गिरता ये 50 डे उसने ब्रेक की, अब उसके नीचे कंसोलिडेट करता रहा। ये कंसोलिडेशन जो थी दिसंबर 11 से लेकर फरवरी 6, 2 महीने की कंसोलिडेशन थी ये नीचे को, अंडर 50 डे मूविंग एवरेज 2 मंथ्स। जैसे उसने 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस की, पेपे 2 की बात कर रहा हूं, उसके बाद ये आई बिलीव यहां से ये जो मूव किया था पेपे 2 ऑलमोस्ट 14 to 15x की मूव थी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट में ड्रॉप आया, पेपे 2 ने फिर 50 डे मूविंग एवरेज को यहां पे ब्रेक किया, ठीक है। इसने ब्रेक इसको किया मार्च 13 को, नहीं मार्च 15 को ब्रेक किया 50 डे मूविंग एवरेज को, ओके। अब ये कंसोलिडेशन चलती आ रही है। अब इसने 50 डे मूविंग एवरेज को टेक्निकली जो है ना अपसाइड ब्रेक किया, रिक्लेम किया है मई 20 को, तकरीबन 2 महीने बाद। फिर यहां पे भी 2 महीने की कंसोलिडेशन थी पीछे, और जैसे इसने 50 डे को ब्रेक किया 15x दिए थे, ठीक है। वहां पे मार्केट कैप छोटा था, इसको आसानी हुई, ठीक है। अब इसको पूरा कर लेना, इसको पूरा कर लेते हैं जाहिद भाई। यहां पे मार्केट कैप देखना कितना है और यहां पे कितना था, थोड़ा सा आप यहां पे मेंशन कर देना, बल्कि ये बाद में ही बात हो सकती है। 50 डे जब इसने लास्ट टाइम ब्रेक की थी, इसने 15x मूव किया था। अब पेपे 2 ने फिर 50 डे मूविंग एवरेज जो है इसको ब्रेक किया है मई 20 को, इसलिए मैंने उस दिन इसके ऊपर बात की थी। यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि यहां से इसका एक इसी तरह की एक रैली बनती है। लास्ट टाइम 50 डे ब्रेक की, ये रैली की, उससे पहले 50 डे ब्रेक किया और ये मूव किया था। तो मेरा ख्याल है कि मीन कॉइन्स की हाइप भी बनी हुई है। सो अगर ये इस येलो लाइन को हम एज ए ट्रेंड लाइन या एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, तो आई बिलीव कि पेपे 2 जो है ना, मेरा ख्याल है जून में इसकी ये मूव हो ही जाएगी। लेट्स से लाइक दिस राइट हियर, कीप इट हियर, कीप दिस हियर। मेरा ख्याल है कि यहां से इसको यहां तक आना चाहिए, जो कि 5-6x की मूव बनती है इजी, ठीक है। 6x बनता है, लेकिन अगर अच्छी हाइप मिल जाएगी जस्ट लाइक टर्बो, अगर ये टर्बो की तरह मूव करना शुरू हो गया तो फिर ये यहां तक भी जा सकता है, ओके। सो 50 डे मूविंग एवरेज उसने ब्रेक कर दी हुई है। आई एम नॉट सेइंग दैट, एक टेक्निकल बात हो रही है, ये चार्ट्स के हवाले से मैं बता रहा हूं। वट एवर चार्ट इज टेलिंग मी, आई एम शोइंग यू दैट, वो सेम चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। हाँ, ये है कि अगर ये अगर इसने एक बार तो इसको रीटेस्ट कर लिया ऑलमोस्ट राइट हियर, अगर ये दोबारा फिर पिछली बार उसने रीटेस्ट नहीं किया, कोई भी ब्रेक किया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन की थी 3 दिन और कीप ऑन गोइंग, ठीक है। उससे पिछली बार ब्रेक करके थोड़ा सा 50 डे की तरफ आया था इसको रीटेस्ट करने, लेकिन रीटेस्ट किया नहीं था। अब यहां पे अगर ये 50 डे को रीटेस्ट करने आता भी है ना, मेरा नहीं ख्याल कि यहां नीचे पूरा आएगा। मेरा ख्याल है इस लेवल को ये सपोर्ट बनाएगा 62 या 60 वाले लेवल को, या एट द मोस्ट 4 आवर में जाएंगे तो ये इस रेड लाइन 200 इन 4 आवर, जो लोग टेक्निकल करते हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, वो 54 पे है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल भाई यहां जाने वाला है ये। आई थिंक यही 60-62 से रिवर्स होगा, और आराम से जो लोग बैठ के इसकी ट्रेड लेंगे ना, जिन्होंने ली हुई है, या जो लोग इसको बैठ के आराम से तसल्ली से इसको वॉच करेंगे, दे आई थिंक ये एक अच्छी मूव करेगा। जैसे ही टर्बो ड्रॉप होगा ना, इसमें वॉल्यूम आएगा, इट्स गोना गो ऑल द वे हियर। इसको तसल्ली से आपने डील करना है, तसल्ली से। दैट्स ऑल। आज के लिए मेरा ख्याल काफी हो गया, 2 घंटे। मियां साहब आपकी बात मुंह से निकली पूरी हो गई। जी शुक्रिया। क्यों भाई, मियां साहब की बात पूरी क्या होनी है, वैसे ही आपने करना होता है, 2 घंटे वैसे ही आपने 2 घंटे करना होता है। चले, हाँ जी, आज तो अच्छी पानी बात भी है। पड़ा था कमरे में।
आपको पता कितना बिजी हूँ नदीम भाई आज, पता ना आपको? सोचें आपको किसने यहाँ बैठाया हुआ? तो सोना नहीं है, काम करना है यार। शेख ये साहब मियाँ बैठाया साहब बस यूके यहाँ वाले लेट हो गए हैं आज। somebody इमरान saying भाई लेट हो। how to join the VIP group. आप मेरी जो है टिकटॉक की बायो, उसमें फर्स्ट लिंक जो है वो फ्री ग्रुप का है, सेकंड लिंक जो है वो वीआईपी ग्रुप का है। यू मस्ट ज्वाइन बोथ ऑफ देम, ठीक है। एंड अगर आप फ्री ग्रुप में चले जाएंगे तो उसमें हम वीआईपी ग्रुप का लिंक अभी पोस्ट कर देते हैं। जाहिद भाई आप जी मैं कर देता हूँ। वीआईपी का लिंक पोस्ट कर दें। अनदर थिंग, इस लाइव के बाद अगर कोई बंदा भी आपको वीआईपी ग्रुप का लिंक आपके टेलीग्राम पे या टिकटॉक पे भेजता है, इट्स गोना बी फेक, उसको ज्वाइन नहीं करना आपने, क्योंकि यहाँ पे स्कैमर भी बैठे होते हैं, बहुत से स्कैमर है, बहुत से स्कैमर। ठीक है। आपने वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका लिंक आप हमारे पब्लिक ग्रुप में से लेंगे, ठीक है। यार बेस्ट मीमी कोइन टर्बो आपको मार्च के महीने में दिया था, मेरे से खुद इसकी ट्रेड मिस हो गई है, कुछ ना पूछो। अच्छा, जिन लोगों ने स्टिल एनालोज रखा हुआ है, एनालोज लास्ट टाइम वो मेरा ख्याल है 200% मूव किया था जब ट्रेड ली थी हमने। मुझे पिछले महीने कुछ लोग कह रहे थे कि हमने एनालोज स्टिल रखा हुआ है। जिन्होंने रखा हुआ है ना, रखो। मेरा ख्याल है एनालोज भी यहाँ से 3 से 5x की मूव दे सकता है। दैट्स अनदर टिप। और कितनी टिप्स दूं आपको? जाहिद भाई उस दिन हमने मीनू की बात की थी इस यहाँ पे, कि वो आपस में हमने डिस्कस किया था। नहीं लास्ट टाइम हमने मीनू नहीं था डिस्कस किया, यहाँ पे आपस में अच्छा किया था। यार लास्ट टाइम इन लोगों को मीनू देना था, मैंने बताना था जब उसका मार्केट कैप अंडर 1 मिलियन था। लेकिन हमने लाइव नहीं किया ना नदीम भाई उसके दौरान, हम लोग अब बिजी थे। मीनू मेरे हाथ आया था $1 मिलियन के मार्केट कैप पे। अब उसका मार्केट कैप है 2.7 मिलियन। जिस दिन से हमने खरीदा है ना, सॉरी यार, 170% मूव कर गया होगा। राइट भाई, आपने तो लिया होगा। जी बिल्कुल। सुहेल भाई ने भी लिया है। नदीम जाहिद भाई मीमी कॉइन के किंग है। जाहिद भाई को कोई भी मीमी कॉइन बता, इनको कोई तगड़ा फंडामेंटल वाला कॉइन बता दो और एक साइड पे मीन कॉइन बता दो, जाहिद भाई मीन कॉइन लेने पहले चले जाते ज्यादा कॉइंस में। चले नदीम भाई मैं निकलने लगा हूँ। भाई बहुत शुक्रिया जी, वेरी गुड। ओके हाँ सर। जी लिंक भी चले मूव ठीक करेगा है यार, सब, सारे अल्लाह कॉइन मूव हाफिज। करेंगे, बस बिटकॉइन को 90K पे जाने दो, ठीक है। एंड कीप योर टारगेट्स अप, अपना टारगेट डाउन नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। और जो भी नेक्स्ट लाइव का टाइम डिसाइड होगा टिकटॉक के ऊपर पोस्ट करूंगा। ओके जी, ओके थैंक थैंक यू। यू जी, टेक केयर, ओके जी अल्लाह हाफिज। थैंक यू।